So now we can start. So let's complete the topic of Azure storage account first, then we will start a new topic. So in storage account, there are some topics that we need to discuss. The first topic would be the tiers in storage. Then we have to discuss about the replication process. Then we have to talk about life cycle management rules or policies. Then we have to talk about the restoration process or recovery process. So let's complete these topics. So before this, let me log in into the Azure portal and let's set up one of the storage account. पहले एक storage बनाते हैं, then we will discuss further about it. So I will quickly create one of the storage account. So let's create a new resource group. Name will be app storage 001. This is not available. So app storage 1010. Then the region would be UK South, standard, LRS, next, and review plus create. So now the storage account have been deployed. So let's move to the storage account and let's refresh. So we have one storage account ready, app storage 1010. If you click on this, then we have a lot of options here. So if I create one container, if I just go and if I just create one container with any random name, so I will give cont01, create. See, what happens whenever we talk about the containers. So inside the container, when I upload any data, let's suppose if I get inside the cont01 container, and here if I will upload any kind of data, for example, if I upload something, so if I upload these two files, for example, so generally what happens whenever I upload something, there is one option access tier. And under the access tier, you can see the option is hot, invert, hot, invert. So what is the meaning of this? So when we talk about Azure storage account, in the Azure storage account, we have some tiers. We call them account tiers. And these are hot, cool, cold, and archive. So there are 4 tiers in Azure storage account. Cold got added in the year of 2023 last. So this is a new option. Before this, it was only hot, cool, and archive. But nowadays, 4 options are available. So what is the meaning of these tiers? So let me go to the official document also.
So if we go to the official document here as well, we should be able to see 4 tiers. Why it is loading so slow? Yeah. So see. So when we talk about the access tiers of blob data, so you can see hot, cool, cold, and archive. So what is the meaning of this? So what is the real purpose of Azure storage account? To keep the data, right? We create the storage account in Azure so that we can keep some data inside this. Now, when I talk about keeping the data, so it's not a one-time job. It's not something that you have uploaded something inside the storage account and you will forget about it. No, if you have uploaded something in the storage account, so whenever you want to use them, whenever you need that data, you will definitely access that. जब हमें उस डेटा की रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको एक्सेस भी करेंगे. एंड व्हेन वी वांट टू अपलोड समथिंग, सो दैट टाइम वी विल अपलोड आल्सो. सो हमारे दो काम होंगे. The people who are keeping their data, they will be in the process of uploading something, and the people who need the data, they will be in the process of accessing the data. मतलब डेटा रखना और डेटा यूज करना, डेटा को एक्सेस करना, ये काम चलते ही रहेगा. It's not something like we have uploaded something in the storage account and we will forget about it. No, it does not happen. Data is important. We need the data. Sometime we need the data on very frequent basis. Sometime we need the data one time in a day. Sometime we need the data 1 or 2 times in a year. But yes, there will be time when we have to access the data. So generally what happens, there are access tiers in Azure storage account. If you want to access your data, so definitely the network is getting used. जब हम Azure के storage account से कोई data access करते हैं, so the network is getting used in that case. So what is your access requirement? How frequent you want to access the data? Do you want to access it regularly? Do you want to access it occasionally? And depending upon the cost also, because no one wants to attract heavy cost. सबको ज़्यादा cost नहीं चाहिए. They want to save the cost for the company as well. So if we have a lot of data in the storage account, we want to focus on two factors. One is the cost. पहली चीज है cost, कि cost कम लगना चाहिए, because data रख तो दिया मैंने. Data is like a backup. I have the copy. One copy is there in the Azure storage account. One is there in my system. So I have kept it as a backup purpose. Backup के तौर पे ही तो रखा है मैंने data storage में in the cloud. So definitely there is a cost of keeping, of saving the data inside the storage. So I want to minimize this cost. मुझे ज़्यादा पैसा भी नहीं लगना चाहिए. Plus when I want to access the data, so that time my speed should also be good. So as per the requirement, these two things should be under the balance. So for that, the access tiers have been designed. उसके लिए access tiers design हुए हैं, and we have 4 categories of the tier. So the very first tier is hot. So what is hot actually? In the hot, what happens? This kind of tier has been designed for those scenarios where the access cost is less and storage cost is high. Means if you will keep something in the storage account, आपने Azure पे storage बनाया, and if that is in the hot tier, अगर वो container hot tier में है, so if you have kept something inside this container, so the storage cost will be high. मतलब data रखने का जो charge होगा that will be high, but access cost will be lower. Access cost lower means if someone wants to access that data, so that network charges will be less, but retention charges will be high. So that is called hot tier. So if you have that kind of data that you access on very frequent basis, then Microsoft recommends to keep it in the hot tier. अगर आपके पास कोई ऐसा डेटा है जो आप बहुत frequent टाइम पे एक्सेस करते ही रहते हो, जैसे कुछ डेटा ऐसे होते हैं जिसको हमें मतलब बार बार एक्सेस करना पड़ता है. We have to open it multiple times. For example, if there is any finance data, if there is any finance file, we have kept it in the Azure storage account, so we will have to access it on the very frequent interval. या HR का कोई डेटा रखा हुआ है, there are some Excel files, so we have to access them on very frequent basis. So that kind of data can be kept in the hot tier. So in the hot tier, storage cost will be high,
मतलब वो डेटा जिसको आप रेगुलर एक्सेस करने वाले हो, उन डेटा को आप इसमें रख दो, सो स्टोरेज कॉस्ट तो हाई रहेगा, बट यस एक्सेस कॉस्ट कैन बी मिनिमाइज, इट विल बी लेस एंड स्पीड विल ऑल्सो बी गुड, क्योंकि ये बनाया ही उनके लिए गया है जो फ्रीक्वेंट बेसिस पे डेटा को एक्सेस करते हैं। तो मान लो हमारे पास इफ वी हैव 200 TB ऑफ डेटा, नॉट एवरी डेटा इज एक्सेस्ड ऑन रेगुलर बेसिस, सारा डेटा रोज एक्सेस नहीं होता। आउट ऑफ 200 TB, फॉर एग्जाम्पल, इफ वी एक्सेस ओनली 1 TB of data on very frequent basis on regular basis, so we can keep it in the hot tier so that we can minimize the excess cost. And for 1 TB, the storage cost will be high. बाकी जो आपका बच गया 199 TB, that you can keep somewhere else and can minimize the storage cost as well. So hot tier is for those kind of data that you access on very frequent basis. Here the storage cost will be high and access cost will be less. So if you have the data which is accessed on very frequent basis, keep it in the hot tier. Second tier is cool. Cool, as the name suggests, ठंडा वाला data means the data that you don't access on very frequent basis. ऐसा डेटा जो आप बार बार एक्सेस नहीं करते हो, यू कैन कीप इट इन द कूल टियर. इन द कूल टियर व्हाट विल हैपन, द एक्सेस कॉस्ट विल बी हाई, it will be inverse. So excess cost is high, but storage cost will be less. So if you have that kind of data that you don't access on very frequent basis, you can keep it in the cool tier. Now, what kind of data we keep in the cool tier? So generally the log files, जो log files वगैरह generate होती है regarding anything, regarding servers there are log files, regarding storage there are log files, regarding any activity there are log files. So we don't access the logs on very frequent basis. बार बार log थोड़ी access करते हैं हम. When we want to analyze something, when we want to do any troubleshooting, that time we go through with the logs, otherwise we don't. So that kind of data can be kept inside the cool tier, and in this tier we would be able to save the storage cost. मतलब डेटा को रखने का जो चार्ज होता है वो कम होगा, but when you will access the data, that cost will be high. It simply means कि इसमें वही डेटा रखा जाता है जो रोज रोज एक्सेस नहीं होता. तो रोज रोज नहीं होता, कभी कभी एक्सेस होता है, तो एक्सेस कॉस्ट एक दिन में कौन सा बहुत हाई हो जाएगी. But if you have kept any data in the cool tier and you are regularly on very frequent basis, you are accessing the data from the cool tier account, so that time there will be very high access cost. So kabhi kabhi karna hai, so that's fine. As per the Microsoft says that if you have any data that you are not going to touch for minimum 30 days, then keep it in the cool tier. ऐसा डेटा जिसको आप 30 डेज तक टच भी नहीं करोगे, रख दिया है, 30 डेज के बाद जरूरत पड़ सकती है, देन यू विल एक्सेस इट. अदरवाइज नो, यू आर नॉट मिनिमम गोइंग टू टच इट फॉर 30 डेज. कीप इट इन द कूल टियर so that you can save the cost of the storage. So cool tier has lower storage cost and higher access cost compared to the hot tier. So it depends upon the requirement. So log files can be kept in the cool tier. CCTV footage is also you can keep in the cool tier. कंपनी की जो CCTV footage होती है, we don't access them on regular basis. हमें उसको रोज रोज तो access करना नहीं होता. Whenever there will be any incident, that time only we are going to access the CCTV footage. तो पैसे बचाने के लिए we can keep it in the cool tier. कभी कभार जरूरत पड़ गई लाइफ में, then we will access it. So we can keep the CCTV footage, the logs inside the cool tier. Plus, there are some other kind of data as well. Like there are some data in the company which is not required, but still we have to keep it just because of the compliance. मतलब कुछ कंपनीज के भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट. सो यूज करो ना करो, वी हैव टू कीप दैट डेटा. जस्ट लाइक इफ यू गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, in the government hospitals they have huge database of the patients. मतलब if you go to the AIIMS hospital in Delhi, they have kept the patient database records for last 50 years 60 years. तो उनके पास मतलब डेटा वो कभी हटाते ही नहीं है. they kept it just because of the compliance, क्योंकि it is a legal law, we have to keep the patient data. So if we have that kind of requirement also, then we can choose the tiers accordingly. So cool tier is basically used for the data that we are not going to access on regular basis, and minimum for 30 days we are not going to touch it. So here we can minimize the storage cost, but access cost will be higher. Third category is cold tier. Cold.
मतलब पहले कूल था फिर कोल्ड हो गया, कोल्ड का मतलब है ठंड से जम गया। So cold tier is a kind of tier where we keep the data that we are not going to access for minimum 30 days. मतलब 3 months तक डेटा को टच भी नहीं करोगे तो इसमें रख लो। हियर द स्टोरेज कॉस्ट विल बी लेस एज कंपेयर टू द कूल, मतलब कूल से भी सस्ती यहाँ पे स्टोरेज की कॉस्ट होगी, बट व्हेन यू विल एक्सेस द डेटा सो एक्सेस कॉस्ट इज गोइंग टू बी हायर। तो अगर आपने कोई डेटा कोल्ड टीयर में रख दिया और उसको अगर आप सोच रहे हो कि आज कल परसों रोज रोज एक्सेस करूंगा, सो definitely you have to pay the heavy bills because of the excess cost. But if you have that kind of data which is not going to be touched for 90 days, then keep it in the cold tier. For example, in some companies the CCTV footage has to be kept for 2 months. कुछ जगह पे again it depends upon business to business. In insurance businesses, the CCTV footage has to be kept for 2 months or 3 months. In some manufacturing industries, it has to be kept for 1 year, 2 years. So it depends. In some government industries, we have to keep it for again 1 year, 2 years. So if we have that kind of data, we can keep it in the cold tier. कोल्ड में रख दो उसको। और कुछ सीसीटीवी फुटेज ऐसी होती है कि मतलब ऑडिट के लिए चाहिए, तो ऑडिट मान लो हर क्वार्टरली हो रही है या 6 मंथ्स में हो रही है, सो दैट काइंड ऑफ डेटा ऑल्सो यू कैन कीप इट इन द कोल्ड। आप उसको कूल में तब रख रहे हो जब वो बिल्कुल नया नया है। जैसे आज मान लो आज की सीसीटीवी फुटेज मैंने 1 मंथ के लिए कूल में रख दी, जस्ट टू सेव द कॉस्ट, क्योंकि हो सकता है 1 मंथ के अंदर अंदर कुछ इंसिडेंट हो जाए, माइट बी समथिंग रॉन्ग माइट हैपन, एंड दैट टाइम वी विल हैव टू एक्सेस the CCTV footage, so that for the time being we can keep it in the cool tier। 1 मंथ के लिए कूल में रख दिया, उसके बाद फिर 1 मंथ तक कुछ हुआ नहीं। अब हमने डिसाइड किया कि यार इससे अच्छा सॉल्यूशन भी तो अवेलेबल है कोल्ड, तो कोल्ड में रख दो। क्योंकि अब 1 महीने में कुछ नहीं हुआ, 2 महीने में कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? अब 3 महीने बाद थोड़ी ना होगा कि चोरी हो गई साहब, पुरानी सीसीटीवी चेक कर लो। कभी कभी हो भी जाता है। So we can keep it in the cold. We can transfer that data from cool tier to the cold tier, where we can keep it for any duration. ऐसा कोई लिमिट नहीं है, but Microsoft says that if you have any data which you are not going to access at least for 90 days, keep it in the cold. So CCTV footage को उठा के इसमें कोल्ड में ट्रांसफर कर दो। Another example is backup data. अगर हम किसी सर्वर का बैकअप लेके रखते हैं, so backup is not frequently used. रोज रोज बैकअप यूज नहीं किया जाता। We don't use it on regular intervals. जब सर्वर क्रैश होगा then only we will recover the data from the backup. So that kind of data also you can keep it in the cold tier so that you can save the cost. आप पैसा बचा सकते हो। So here the storage cost will be less and access cost will be higher. Then comes the last tier which is called archive. Archive का मतलब हो गया compressed. Again I will take the example of CCTV footage. So as I mentioned, CCTV footage if that is fresh, तो 1 मंथ तक तो उसको कूल में रख ही लेते हैं लोग कि 1 महीने में कुछ हो गया तो वी विल रेफर द सीसीटीवी फुटेज। आफ्टर दैट वी कैन ट्रांसफर इट टू द कोल्ड टियर जस्ट बिकॉज ऑफ द कंप्लायंस। सो कंप्लायंस की वजह से जो है कोल्ड टियर में ट्रांसफर करके रख सकते हैं कि अभी हम डिलीट नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी हैव टू कीप इट फॉर 1 ईयर 2 ईयर्स। तो 1-2 साल के लिए तो रखना ही रखना है। सो वी कैन कीप इट इन द कोल्ड टियर दैट टाइम। कभी कुछ होगा 90 डेज में तो हम रेफर कर लेंगे, ऑडिट्स वगैरह होगी देन वी विल यूज इट। अदरवाइज 90 डेज जैसे ही पूरे हो गए या फिर 6 मंथ्स के लिए मैंने रख दिया कोल्ड में, आफ्टर दैट नाउ वी हैव टू कीप इट फॉर 2 ईयर्स। 2 साल तो रखना ही है मान लो, बट क्यों कॉस्ट पे करूं मैं? क्योंकि अब यूज नहीं है सीसीटीवी फुटेज का, बट वी हैव टू कीप इट जस्ट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट कंप्लायंस। सो व्हाट वी कैन डू इफ आई वांट टू सेव अ लॉट ऑफ कॉस्ट, वी कैन ट्रांसफर द डेटा टू द आर्काइवल टीयर। कंप्रेस ऑर्डर में इसको डाल दो। इन द आर्काइव टीयर वी ट्रांसफर दोस काइंड ऑफ डेटा दैट वी डोंट वांट टू एक्सेस एट लीस्ट फॉर 180 डेज। मतलब 6 मंथ्स तक अगर आप कोई डेटा एक्सेस मिनिमम टच भी नहीं करोगे तो उसको आर्काइव टीयर में रख दो, माइक्रोसॉफ्ट ऐसा बोलता है। हियर द स्टोरेज कॉस्ट विल बी सुपर लेस। सबसे कम स्टोरेज कॉस्ट आर्काइव टीयर की होती है, एंड when you want to access the data the access cost will be super high। मतलब इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा जो एक्सेस कॉस्ट है वो आर्काइव की है, और इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा जो स्टोरेज की कॉस्ट लेस है वो आर्काइव की है। and there is one limitation of the archive tier. If you have kept any data in the archive tier, if you have stored something in the archive tier, you cannot directly access the data। अगर आपने इसके अंदर कोई डेटा रख दिया आर्काइव टीयर में तो आप उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। इन ऑल दीज 3 tiers
we can access the data whenever we want. We can access the data, बस हमें charges वगैरह pay करने हैं. But if you have kept any data in the archival tier, you cannot access them. आप उसको access नहीं कर सकते. अगर करना है तो if you want to access it, there is a process which is called rehydration. So you have to do the rehydration process accordingly. तो यहाँ पे कहीं पे लिखा भी होगा, लेट मी सी कहाँ पे लिखा हुआ है. कहीं पे लिखा होगा, यू गाइस कैन रीड अबाउट इट. मैंने, हाँ इसमें लिखा होगा कहीं. ऑफलाइन स्टोरेज एक्सेस हैज लोअर स्टोरेज कॉस्ट. रिट्रीवल कॉस्ट बहुत हाई है जैसा कि मैंने बताया. ये लॉन्ग टर्म बैकअप जो बताया, सीसीटीवी फुटेज या बैकअप्स वगैरह जो एक एक साल के लिए रखने पड़ते हैं, यू कैन कीप इट हियर. कुछ फाइल फोल्डर्स रख सकते हो. एंड आर्काइव के बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा देखो. Data in the archive tier can take up to 15 hours to rehydrate depending upon the priority. मतलब कहने का ये मतलब है, अगर आपने कोई डेटा एक्सेस आर्काइव टियर में रख दिया और आप उस डेटा को एक्सेस करना चाहते हो, तो उसके लिए पहले तो आप उस डेटा को एक्सेस नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट विल बी इन द आर्काइवल फॉर्मेट. आर्काइवल फॉर्मेट का मतलब हो गया कंप्रेस होता है वो. जस्ट लाइक इफ यू हैव केप्ट एनी डेटा इन द कंप्रेस ऑर्डर, आपने WinRAR वगैरह का नाम सुना होगा. तो अगर आप कोई डेटा को कंप्रेस कर देते हो यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर, so that time in order to use it you have to extract that data. आपको उसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना होता है. सेम प्रोसेस इज हियर. इफ यू हैव आर्काइव्ड एनी डेटा, अगर आपने डेटा को आर्काइव कर दिया, सो इट विल कंप्रेस होने की वजह से यू कैन नॉट यूज इट, यू कैन नॉट एक्सेस इट. सो इफ यू वांट टू एक्सेस, यू हैव टू परफॉर्म द रीहाइड्रेशन प्रोसेस. आपको उसको रीहाइड्रेट करना पड़ेगा. रीहाइड्रेट करने में इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम. मतलब रीहाइड्रेट करने में इट कैन टेक 15 hours, it can take 2 hours, 3 hours, it can take days also, depends upon the size of data. तो ऐसा नहीं है कि अभी मेरे को डेटा एक्सेस करना है तो मैं कर लूंगा. नो, रिहाइड्रेशन कैन टेक अ लॉट ऑफ आवर्स. बहुत ज्यादा टाइम लेता है रिहाइड्रेशन, बिकॉज आपने उसके साइज को कंप्रेस कर दिया है. सो स्टोरेज कॉस्ट विल बी लेस. लेटेंसी बहुत ज्यादा होती है आर्काइव टियर में. अगर आप कोई डेटा एक्सेस कर रहे हो, रिहाइड्रेशन प्रोसेस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. कोल्ड टियर में भी लेटेंसी होती है, स्लोनेस होती है डेटा एक्सेस करने के टाइम पे, और चार्जेस भी एक्सेस के हाई होते हैं. कूल टियर में बैलेंस होता है, और हॉट टियर में सबसे हाई स्पीड होती है डेटा एक्सेस करने की. सो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग टाइम पे डेटा को आप रख सकते हो. सो this is very important topic, and in during the interviews this will be discussed of course. तो केस सिनेरियोज दे देगा वो आपको कि मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है तो मैं कौन से टीयर में डेटा रखूं. सो यू शुड नो अबाउट इट. दिस इज देयर इन द नोट्स एज वेल. बाकी आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को भी रीड कर सकते हो. नाउ इफ आई गो टू माय एज्योर पोर्टल, so we have one container cont01, and you can see it is in the hot tier. जो भी डेटा मैं अपलोड कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल अपलोड एनीथिंग, it will by default go to the hot tier. देखो, if I will upload something, so it will go into the hot tier. देखो, it is going into the hot. So why this is happening? Because by default my account, my storage account is configured as a hot tier in default. मेरा storage account hot tier में configured है. So if you go to the storage here, this is my storage. If you go here and if you scroll down, so there is one option of configuration. Let's figure out where it is. Yeah, under the settings there is one option of configuration. So if you click on the configuration option, on the very bottom you can see blob access tier default. So default मेरा hot selected है, hot. That is the reason whenever I upload any data, it is going into the hot tier. तो जो भी आप अपलोड करोगे वो hot में जाएगा. बट आप चाहते हो कि जो भी मैं डेटा अपलोड करूँ, इट शुड गो इनटू कूल और कोल्ड बाय डिफॉल्ट. सो यू कैन चूज इट फॉर द कंप्लीट अकाउंट एंड यू कैन सेव. सो मैंने कूल कर दिया इसको फॉर एग्जांपल. नाउ इट हैज बीन चेंज्ड. नाउ इफ आई गो टू माय कंटेनर and if I open this cont01, so all the data has been changed to the cool tier. See, infed का मतलब होता है default. So सबके सब cool में आ गए हैं. And if I will upload anything, so that will also go into the cool tier. See, if I will upload anything,
it is going into the cool. See, सबके सब cool में है. By chance there are some data which I want to keep it in the hot tier, so I can always convert. जैसे अब मुझे ये data access करना है, अब access ऐसे भी कर सकता हूँ मैं. I can use any of the method. I can use SAS, I can use anonymous access, I can use access key, I can use Azure AD authentication, या मैं इसको डायरेक्ट डाउनलोड ही कर लूँ क्लिक करके यहाँ से. Then also I can access the data. But the thing is, the problem is, अगर मैंने cool tier में data access कर लिया, so I have to pay huge access cost, क्योंकि cool tier में storage cost कम होती है but access cost ज़्यादा होती है. So if you want to access this file, you can convert it to the hot tier then. अगर आपको बार बार ये फाइल एक्सेस करनी पड़ रही है, so convert it to the hot tier. How will you do that? So in order to change the tier, you can just choose the data, select the data, change the tier. Click on change tier. By default cool है. इस पर्टिकुलर फाइल को हॉट बनाना है या कोल्ड बनाना है या आर्काइव बनाना है, चूज इट अकॉर्डिंगली. हॉट बनाना है, हॉट चूज करो, सेव. सी, नाउ दिस डेटा हैज बिकम हॉट. बाकी सब बाय डिफॉल्ट कूल है. जिसको चेंज करना है सेलेक्ट करके चेंज कर दो. So this is also one of the option. Suppose I want to convert any data to the archive tier. So choose the data, change the tier and choose the archive option. और ये देखो वार्निंग दे रहा है कि आर्काइव कर दोगे तो फिर आप रिहाइड्रेट करना पड़ेगा, इनएक्सेसिबल हो जाएगा डेटा, एंड यू हैव टू रिहाइड्रेट इट बैक टू द हॉट और कूल. मतलब आपको अपने डेटा को या तो हॉट या तो कूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, तब जाके आप उसको एक्सेस कर पाओगे. एंड इट कैन टेक सेवरल आवर्स. कई घंटे लग सकते हैं, अप टू 15 आवर्स, 15 घंटे भी लग सकते हैं. सेव. नाउ माई डेटा विल बी कन्वर्टेड टू द आर्काइव टियर. देखो कन्वर्ट हो गया. अब देखो ये जो हॉट है इसको मैं कूल करना चाहता हूँ, सो आई कैन सिंपली सेलेक्ट चेंज टियर एंड एनी टाइम इफ आई वांट टू मेक इट कूल कोल्ड, कुछ भी करना है करूंगा, बड़े आराम से. हो गया, देखो हो गया. इसको चेंज करना है, हो जाएगा. बट इफ आई वांट टू अगेन यूज माय डेटा, ये वाला डेटा मुझे यूज करना है, इफ आई क्लिक ऑन दिस, डाउनलोड का ऑप्शन भी नहीं आएगा. देखो यू कैन नॉट इवन डाउनलोड. एक्सेस भी नहीं होगा, चाहे आप एक्सेस की लगा लो, चाहे सैस लगा लो, चाहे एजोर एडी, इट इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेसेबल एट एनी कॉस्ट. अब एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट इट टू हॉट और कूल टियर. या तो हॉट में या तो कूल में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले. वी हैव टू मेक इट रिहाइड्रेटेड, एक्सट्रैक्ट. कैसे करोगे, वही सेम प्रोसेस है. चूज द डेटा, चेंज द टियर, इट इज आर्काइव राइट नाउ. So you have the option hot, cool, cold, जिसमें भी करना है करो. If I want to convert it to the hot, select करो hot. अब ये बोल रहा है प्रायोरिटी बताओ मुझे. प्रायोरिटी मतलब कितनी जल्दी चाहिए. There are two priorities, standard and high. स्टैंडर्ड में वही है, जितना टाइम लगना है डेटा सेंटर पे उतना लगेगा, बट चार्जेस बहुत ज्यादा नहीं लगेंगे कन्वर्जन के. बट इफ यू विल गो विद द हाई प्रायोरिटी, सो मैक्स टू मैक्स कितना भी बड़ा डेटा हो 15 आवर्स के अंदर अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा. बट चार्जेस विल बी वेरी हाई, सुपर हाई, मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि वो आर्काइव है. सो डिपेंड्स करता है अगेन कंपनी में, हाउ सून दे नीड द डेटा. आई विल जस्ट गो विद द स्टैंडर्ड, क्लिक ऑन सेव. नाउ you can see it is in the process, rehydration pending to the hot. अब ये जो rehydration pending to hot जो है, इसको convert होने में there is no SLA. मैक्सिमम 15 आवर्स 20 आवर्स तक चले जाता है. मिनिमम कुछ नहीं पता, 1 आवर भी ले सकता है, 30 मिनट्स भी ले सकता है, 2 आवर्स भी ले सकता है. नो वन नोस. तो जब हो जाएगा देन इट विल अगेन कन्वर्ट टू द हॉट. उसके बाद फिर आप डेटा एक्सेस कर लो, जनरली द प्रोसेस. So that is the tier option. And if I talk about the file share also, अगर मैं file share create करूँ, just like yesterday we had created one file share, so let me create the one again. So file share बनाते हैं एक, उसमें भी tier आता है hot, cool, but there is one more tier there which is called transaction optimize. So if you click on the file share, give any name, file share -01. So there are 3 tiers, transaction, hot and cool. So hot cool तो वही है, यहाँ पे cold नहीं है अभी तक. In the file share there is no cold tier, only hot cool. Transaction optimize is the balance one. मतलब आपको एक्सेस भी अच्छी स्पीड में चाहिए, स्टोरेज के भी ज्यादा पैसे नहीं देने हैं. सो इफ यू वांट टू बैलेंस कि मैं रोज रोज डेटा एक्सेस करता हूँ, बार बार एक्सेस करता हूँ, देयर आर हेवी ट्रांजेक्शन, हेवी वर्कलोड, बट मुझे स्पीड अच्छी चाहिए, लो लेटेंसी मीन्स हाई स्पीड चाहिए मुझे, और कॉस्ट भी बैलेंस होनी चाहिए, देन वी कैन गो विद द ट्रांजैक्शन ऑप्टिमाइज इन द फाइल शेयर. क्योंकि यहाँ पे फाइल्स बहुत होती है. हॉट एंड कूल के केस में क्या होता है,
वही जो मैंने आपको बताया. So accordingly we can choose it. So generally regarding the file share, because there will be a lot of files uploaded on regular basis, so transaction optimize choose किया जाता है. और कैपेसिटी 100 TB की होती है फाइल शेयर की. पोर्ट नंबर 445 काम करता है जैसा कि मैंने कल बताया था. इफ यू क्लिक ऑन नेक्स्ट, बैकअप हम नहीं ले रहे हैं, सो रिमूव द बैकअप्स, क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड क्रिएट. So the file share has been created and the tier as I mentioned is transaction optimize. और इसको अगर चेंज करना है तो इस पे क्लिक करके we can change. So tiers are always changeable. Tiers हम चेंज कर सकते हैं, depends upon the requirement. See? और ये जो कैपेसिटी है ना, जो इसकी जो कोटा है, द फाइल शेयर हैज द कोटा ऑफ 100 TB, इसको भी आप कभी भी चेंज कर सकते हो. यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस और 100 TB को आप रिड्यूस कर सकते हो, बट देर इज अ लिमिटेशन. इफ यू हैव यूज द मैक्सिमम स्पीड, जैसे 100 TB जो है फाइल शेयर की मैक्सिमम स्पीड है, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी है. इफ यू हैव यूज्ड दिस ऑप्शन तो आप उसको डाउनग्रेड करके कम नहीं कर सकते. बट अगर आपने कम वाला ऑप्शन यूज किया होता क्रिएशन के टाइम पे, तो आप उसको हमेशा अपग्रेड कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, if you go to the file share again and if you try to create a file share, so ये जो ऑप्शन आता है मैक्सिमम कैपेसिटी का, दिस कैन बी रिड्यूस. ये कहाँ से रिड्यूस होता है? सो जब हम स्टोरेज अकाउंट बनाते हैं दैट टाइम देर आर ऑप्शंस. जब हम क्रिएट करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस आते थे जो हम नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहे थे. सो वहां से हम इसको कम कर सकते हैं. एंड यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा, यू हैव टू फिगर आउट. फाइल शेयर के रिगार्डिंग देखो, ये लार्ज फाइल शेयर इनेबल्ड है, तो इसको हटा नहीं सकते हो आप लोग. जब आप क्रिएट करते हो देन यू हैव टू रिमूव दिस. मैं आपको दिखाता हूँ, देखो. इफ यू क्रिएट द स्टोरेज, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आता है इन द एडवांस्ड, देखो एडवांस में जो ऑप्शन आता है ना, इस चेक को आपको हटाना है. जब आप ये सारे ऑप्शंस फिल कर दोगे तब ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा. यू हैव टू रिमूव दिस चेक बॉक्स. अगर आप ये हटा दोगे देन द कोटा विल बी इन योर कंट्रोल. फिर आपकी मर्जी है, आप 5 GB का फाइल शेयर बनाओ, 10 TB का बनाओ या 100 TB का बनाओ. दैट्स योर चॉइस. सो दैट टाइम यू कैन चेंज द कोटा. अगर आपने वो चेक बॉक्स चेक कर दिया है देन बाय डिफॉल्ट 100 TB का वो बनाएगा. अगर इसको भी कम ज्यादा करना है, सो देर इज वन ऑप्शन. इफ यू गो टू द फाइल शेयर, यहाँ पे एक मैक्सिमम कैपेसिटी करके ऑप्शन आ रहा है. इफ यू क्लिक ऑन दिस, सो यहाँ से वो कम ज्यादा होता है, बट वहां से आपको पहले चेक हटाना पड़ेगा. एंड चेक कैन ओनली बी रिमूव ड्यूरिंग द डिप्लॉयमेंट. आप उसको बाद में चेंज नहीं कर पाओगे. सो फाइल शेयर के लिए भी टीयर्स होते हैं, कंटेनर्स के लिए भी टीयर होते हैं, बट फाइल शेयर में 3 होते हैं: ट्रांजेक्शन ऑप्टिमाइज, हॉट एंड कूल. कंटेनर्स में 4 होते हैं: हॉट, कूल, कोल्ड एंड आर्काइव. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. तो दिस इज ऑल्सो डन. ये इंपॉर्टेंट है, वैसे सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, बट इससे क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल. ये हो गया. अब इसकी बात करते हैं, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट पॉलिसी. सी व्हाट इज लाइफ साइकिल मैनेजमेंट पॉलिसी? सो दिस इज ए काइंड ऑफ ऑटोमेशन रूल. यहाँ पे आप ऑटोमेशन रूल लगाते हो. ऑटोमेशन रूल का क्या मतलब हो गया? इन द स्टोरेज वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा, राइट? स्टोरेज अकाउंट में बहुत सारा डेटा होता है ना. अब मैंने अभी आपको समझाया कि डेटा कभी कभी ऐसा होता है कि आप रोज एक्सेस कर रहे हो, कुछ टाइम के बाद वो डेटा रोज एक्सेसिबल नहीं रहता. जैसे फॉर एग्जांपल सीसीटीवी फुटेज, फॉर द इनिशियल डेज वी कैन कीप इट इन द हॉट टीयर, या फिर हम उसको कूल में रख सकते हैं. कुछ टाइम के बाद जब उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी, बट वी हैव टू स्टोर इट बिकॉज ऑफ द कंप्लायंस, तो हम उसको कोल्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं. फिर जब बिल्कुल ही 1 साल तक कुछ नहीं हो रहा या 6 मंथ्स तक कुछ नहीं हुआ, वी कैन ऑलवेज ट्रांसफर इट टू द आर्काइव टीयर. सेम गोज विद द बैकअप्स. जितने भी हम सर्वर्स के बैकअप या डेटा के बैकअप रखते हैं वो रोज रोज तो यूज नहीं होते. इट इज ओनली यूजेबल व्हेन वी वांट टू रिकवर समथिंग. एंड सेम गोज विद द लॉक्स ऑल्सो. जितने भी लॉक्स होते हैं वो रोज रोज एक्सेसिबल नहीं होते. सो व्हेन वी वांट टू एक्सेस देम ओनली वी यूज इट. सो इन सारे केसेस में, रिगार्डिंग ऑल दीज सिनेरियोज, व्हाट वी कैन डू, वी कैन सेट अप ए लाइफ साइकिल मैनेजमेंट रूल. आप यहाँ पे लाइफ साइकिल मैनेजमेंट रूल लगा सकते हो कि इतने टाइम तक मेरा डेटा हॉट में रहे, इसके बाद कूल में चले जाए, इतने टाइम के बाद जैसी ड्यूरेशन कंप्लीट होती है कोल्ड में ट्रांसफर हो जाए, उसके बाद आर्काइव हो जाए. और आर्काइव में मान लो आपका कंप्लायंस रूल है कि आपको 1 ईयर या 2 ईयर्स तक डेटा रखना पड़ेगा. आफ्टर 2 ईयर्स आपको चाहिए ही नहीं वो डेटा, सो ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाए. सो दैट काइंड ऑफ एंड इफ एंड बट स्टेटमेंट्स यू कैन कॉन्फ़िगर. इफ और एल्स के जो स्टेटमेंट होते हैं ना लॉजिक वाले,
that you can configure in the life cycle management policy. So if you go to the storage account, so if you scroll down, there will be option of life cycle rules. Era life cycle management under the data management. So if you click on this, you can add a rule, and here you can create a rule name. तो कोई भी नाम दे दो, जैसे मैंने दे दिया mg rule -01. अब ये कह रहा है जितना भी डेटा आपके स्टोरेज में रखा हुआ है, ऑल द ब्लॉब्स, सब पे अप्लाई करना चाहते हो या लिमिट, मतलब आप फिल्टर लगाना चाहते हो कि कौन से डेटा पे हो. सो आई वांट टू अप्लाई इट ऑन ऑल द ब्लॉब्स. उसके बाद नेक्स्ट. अब ये if और then का स्टेटमेंट, कि क्रिएटेड मतलब क्रिएशन डेट पे अगर आप डालना चाहो तो, कि कब क्रिएट हुआ है, कितना पुराना है. लास्ट मॉडिफाइड का मतलब है कितना पुराना हो चुका है. क्रिएशन मतलब डेट के हिसाब से, लास्ट मॉडिफाइड मतलब डेज के हिसाब से. सो सपोज इफ आई से दैट इफ एनी डेटा इज 30 डेज ओल्ड, अगर कोई डेटा 30 दिन पहले अपलोड हुआ था, लास्ट मॉडिफाइड डेट के अकॉर्डिंग अगर वो चेक करेगा, सो 30 डेज पहले अगर कोई डेटा अपलोड हुआ है, देन उसका क्या होना चाहिए. सो मूव टू द कूल स्टोरेज. 30 दिन पुराने डेटा को कूल में डाल दो. कूल में भी कंडीशन लगा देते हैं, ऐड कंडीशन, कि अगर कोई डेटा कूल के अंदर, लेट सपोज इफ इट इज देयर फॉर 60 डेज, 2 महीने तक रह गया, देन उसको उठा के कोल्ड में मूव कर दो. कोल्ड में भी कंडीशन लगा देते हैं, इफ एनी डेटा इज लेट से हैज 90 या 60 डेज रह गया या 90 डेज रह गया मान लो, तो उसको उठा के जो है आर्काइव में डाल दो. और आर्काइव के बाद ये देखो, उन डेटा को स्किप किया जाए जिसको आपने लास्ट 7 दिनों में रिहाइड्रेशन किया है. मतलब जिन डेटा को आप रिहाइड्रेट कर चुके हो उनको स्किप किया जाए आर्काइवल के टाइम पे. तो अगर ये बॉक्स चेक करते हो, सो यू कैन डिफाइन द लिमिट. अदरवाइज इसको अनचेक कर दोगे तो उन डेटा को भी कंसिडर कर लेगा जो रिहाइड्रेट हो चुके हैं पहले और दोबारा से कन्वर्ट किए गए हैं आर्काइव में. इतना होने के बाद भी यहाँ पे आप एक रूल लगा सकते हो कि डिलीट ही हो जाए, कि अगर आर्काइव में भी वो डेटा मान लो इफ इट इज देयर फॉर 120 डेज, तो डिलीट ही हो जाए सीधा. डेटा ही अपने आप क्लीन हो जाएगा. यू डोंट हैव टू मैनुअली क्लीन एनीथिंग. जैसे कंपनी में क्लीनअप्स होते हैं, सो दैट क्लीनअप हैपन्स मैनुअली. बट देयर आर सम एडवांस कंपनीज हु सेट दिस काइंड ऑफ ऑटोमेशन रूल्स. तो अपने आप ही जो डेटा रिक्वायर नहीं है, दैट विल बी क्लीन्ड एंड स्टोरेज विल बी फ्री. Cost will be optimized accordingly. So this is a cost saving option also, and this is going to reduce your management overhead. जो फालतू में मैनुअल काम करना पड़ता है एडमिन को, so that can be reduced. So this is very useful option. So automation लगाने के लिए लाइफ साइकिल मैनेजमेंट रूल्स एप्लीकेबल होते हैं. एंड जनरली दिस इज द टॉपिक ऑफ AJ 305. बट छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसमें कवर कर दिया क्योंकि 2-4 मिनट का ही टॉपिक था. अदरवाइज है ये AJ 305 में, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेशन वगैरह आ जाते हैं. बट इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स व्हाई आई हैव कवर्ड इट, एंड इट इज स्मॉल ऑल्सो, छोटा भी था. सो ये पॉलिसीज अवेलेबल होती है. नाउ वी हैव सम रिकवरी प्रोसीजर. अब रिकवरी समझते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट द लास्ट ऑप्शन. जस्ट गिव मी 1 minute. लेट मी कम बैक आफ्टर सम वाटर. Here part is done. Life cycle management rules are also done. Now let's talk about the recovery procedure. अब recovery पे बात करते हैं. So I will directly go to the topic. This is my storage account. Inside the storage account, if I go to the container, so we have one container. एक container है यहाँ पे. If I go inside the container, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे data है, right? Accidentally, what happened? My container got deleted. ये container select हुआ and this has been deleted. So if this has been deleted, so now the container got deleted. So containers can be recovered back as well. Containers recover भी हो जाते हैं. You can see there is one option, show deleted containers. If you just on this, keep it on,
सो यू वुड बी एबल टू सी योर डिलीटेड कंटेनर। यहाँ पे आपको आपका डिलीटेड कंटेनर दिख जाएगा। यू कैन जस्ट चेक दिस एंड यू कैन रीस्टोर। आप इसको रीस्टोर कर सकते हो। सो यू कैन क्लिक ऑन दिस थ्री डॉट्स एंड यू कैन क्लिक ऑन अनडिलीट ऑप्शन, देन क्लिक ऑन सेव एंड नाउ इट हैज बीन रिकवर्ड। अब ये रिकवर हो गया है। इफ यू रिफ्रेश, सो you can see the status is active now, और अगर आप इसको ऑफ भी कर दोगे so you should be able to see your container back. So if any container has been deleted accidentally, you can recover it. आप उसको recover कर सकते हो। Now if suppose I go to the file share, ये मेरा file share है, I have a file share here. If this file share has been deleted, ये भी अगर delete हो गया, so this is also recoverable. ये हो गया delete. Now, if you want to recover it, so just click on show deleted shares. Now you can see your share. It has been deleted. Just click and undelete. Now it will recover back. So ये बोल रहा है कि अभी पहले डिलीट तो होने दो। ये बोल रहा है अभी डिलीट नहीं हुआ अच्छे से और आप रिकवरी कर रहे हो, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। दिस इज नॉट एन एरर, दिस इज अ नोटिफिकेशन एक्चुअली। अब करते हैं रिकवरी, थोड़ा वेट करते हैं अगेन। सी नाउ इट हैज बिन रिकवर्ड, तो वापस आ गया। तो यू कैन रिकवर इट। सपोज एक्सीडेंटली इफ द कंप्लीट स्टोरेज अकाउंट हैज बिन डिलीटेड, ये स्टोरेज अकाउंट है, डिलीट कर देता हूँ इसको। तो जस्ट सेलेक्ट डिलीट, you have to type delete here, then delete. So storage is also deleted, and if you want to recover your deleted storage account क्योंकि accidentally delete हो गया है, so you can also recover it. कहाँ से recover करोगे? There is one option of restore. Just click on the restore. Within last 14 days, पिछले 14 दिनों के अंदर अंदर जितने भी स्टोरेज अकाउंट क्रिएट हुए होंगे, यू कैन रिकवर देम इफ दे हैव बीन डिलीटेड। सो यू कैन चूज द सब्सक्रिप्शन एंड यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन कि कौन से स्टोरेज को आपको रिकवर करना है। इन द लास्ट 14 डेज जितने भी डिलीट हुए होंगे, जितने भी क्रिएट हुए होंगे, सब दिखाएगा। देखो लास्ट क्लास के टाइम पे जो जो बने थे, जैसे पॉप स्टार मोजो जो जो ये सब बनाया था ना, ये कब की डेट का है? ये मार्च का है। ये आप लोगों का नहीं है, दूसरे बैच का है। सेम नाम यूज होते हैं मोस्टली। पॉप स्टार मोजो जो जो ये आप लोगों का होगा। ये 6 अप्रैल का है, ये भी अभी हमारा नहीं है। ये वाला हमारा है जो कल बनाया था। कल 12 ही थी ना, इट वॉज 12। यस। सो कल हमने देखो ये स्टोरेज अकाउंट बनाया था, इट इज देयर। अभी जो है आज की डेट में ये वाला डिलीट हुआ है हमारा ऐप स्टोरेज 1010। टाइमिंग्स आर ऑल्सो देयर। देखो जिस टाइमिंग पे क्रिएट हुआ, जिस टाइमिंग पे डिलीट हुआ, यू कैन सी दैट। फिर ये 6 को बनाया गया था। सो आई वांट टू रिकवर दिस वन, जो अभी मेरा डिलीट हुआ है, इसको रिकवर करना है, ये वाले को जो अभी 9:56 पे डिलीट हुआ है। जस्ट चूज एंड रीस्टोर। सो 14 डेज में जितने भी स्टोरेज अकाउंट्स डिलीट हुए हैं, यू कैन रिकवर देम। 14 डेज के बाद इट इज नॉट पॉसिबल टू रिकवर इट बैक। सो दिस अप्लाइज विद द स्टोरेज अकाउंट ओनली। बाकी जो आप ब्लॉब रिकवर कर रहे थे या फाइल शेयर रिकवर कर रहे थे, फॉर दैट देर इज अ डिफरेंट रिटेंशन पीरियड। अब कितना होता है, within how many days we can recover it back? So let me tell you, there is a soft delete option. So my storage is back now. Let me refresh. ये आ गया app storage 1010. So 14 days applies to the complete storage account by default. But if you talk about the blobs and the file share, so the retention timing is in your control. का retention timing आपके कंट्रोल में है कि आपको कितने टाइम में रिकवर करना है। सो इफ यू गो टू द ओवरव्यू, देयर इज वन ऑप्शन ऑफ सॉफ्ट डिलीट। एक यहाँ पे सॉफ्ट डिलीट करके ऑप्शन है। रिगार्डिंग द ब्लॉब, द सॉफ्ट डिलीट बाय डिफॉल्ट इज 7 days। जब हम स्टोरेज क्रिएट करते हैं, वो ऑप्शन आते हैं ना प्रोटेक्शन करके, हम नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश कर रहे थे, वो ये सब ऑप्शन है। तो सॉफ्ट डिलीट इज बाय डिफॉल्ट फॉर 7 days। तो 7 days के अंदर अंदर अगर आपका कोई ब्लॉक डिलीट होता है, यू कैन ऑलवेज रिकवर इट। इफ यू वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज दिस ड्यूरेशन, जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड चेंज द थ्रेशोल्ड। तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। यू हैव द ऑप्शन टू ऑलवेज चेंज इट। सी कौशिकी, यस।
यस कौशिकी, टेल मी। सर ने बोला बॉब है, ब्लॉब से और फाइल शेयर से डिलीट करने पे उसको रिकवर कर सकते हैं। ब्लॉब के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर डेटा डिलीट हो रहा है तो उसको भी रिकवर कर सकते हैं। हाँ, वही सेम प्रोसेस। ओके ठीक है सर। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन थे ना, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी देयर आर टू चेक बॉक्सेस। वन चेक बॉक्स इज रिगार्डिंग द ब्लॉब, कि अगर ब्लॉब डिलीट हो गया तो कितने डेज में रिकवर कर लोगे। और वन इज फॉर कंटेनर, कि पूरा पूरा कंटेनर डिलीट हो गया तो कितने दिन में रिकवर कर लोगे। सो यू कैन ऑलवेज चेंज दिस। मतलब एक पर्टिकुलर ब्लॉब भी रिकवर हो जाता है, एक पर्टिकुलर कंटेनर भी रिकवर हो जाता है। if you scroll down, so there should be for the file share as well. File share के लिए आपको यहाँ भी दिख जाएगा, if you go to the file share, so there is soft delete option. By default it is of 7 days. You can click on this time and you can always increase decrease, so 365 days तक आप इसको ले जा सकते हो। अब मान लो फाइल शेयर मैंने डिलीट करके दिखाया था अभी आपको। इफ यू गो इनसाइड द फाइल शेयर, तो इसमें से भी अगर कोई डेटा डिलीट हो जाता है, सो यू कैन ऑलवेज रिकवर देम। अभी तो कुछ डेटा अपलोडेड नहीं है, अगर कोई डेटा अपलोड कर दोगे सो यू कैन ऑलवेज रिकवर। वही ऑप्शन आएगा ऑन करने वाला, वहां से रिकवर हो जाता है। नाउ लेट मी शो यू वन मोर ऑप्शन। तो फॉर सपोज फॉर एग्जांपल इन माय फाइल शेयर, इफ आई क्लिक ऑन दिस, so in the browse, whenever someone will upload any data, that data will be coming here, right? कल मैंने दिखाया था आपको कि नेटवर्क ड्राइव अटैच करने के बाद कोई भी डेटा अपलोड होता है तो यहाँ पे आता है वो एज ए सेंट्रलाइज स्टोरेज। नाउ लेट मी शो यू वन थिंग, मैं आपको दिखाता भी हूँ। उससे पहले लेट मी क्रिएट वन स्टोरेज बिकॉज देर इज अ टॉपिक ऑफ स्नैपशॉट दैट आई नीड टू डिस्कस, तो इट इज इम्पोर्टेंट। तब तक एक वीएम लगा देते हैं डिप्लॉयमेंट पे। Snapshot is the part of backup, but it is a small topic, so we can discuss right now as well. So I will go with the Windows 3.5 GB RAM, RDP, next, and review plus create. Yes, Deepak. सर एक क्वेश्चन था, जैसे कि अपने हमने रखा हुआ डेटा कूल में रखा हुआ है या कोल्ड में रखा हुआ है, हम्म। और जितना उनका डेज होता है, जैसे कि 90 दिन के लिए अगर उसमें रखा हुआ है हमने, 60 दिन के लिए रखा हुआ है, लेकिन अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट करके टीयर को चेंज कर दें तो सर वहां पे कुछ हो सकता है, मतलब अमाउंट कम हो सकता है सर? जैसे कि 60 दिन भी हो गए और हम ये चाह रहे हैं कि आप इसको एक्सट्रैक्ट करने के बजाय हम इसको थोड़ा सस्ता करने के लिए आप इसको हॉट में डाल के एक्सट्रैक्ट करके एक्सेस कर ले, तो कुछ हो सकता है सर उसमें? मतलब क्योंकि आर्काइव वाले के केस में कह रहे हो? आर्काइव तो उस तरह एक अलग हो गया ना, मैं कोल्ड हाँ, की बात कर रहा हूँ। तो आर्काइव कोल्ड से कोल्ड और कूल में एक्सट्रैक्ट होता ही नहीं डेटा, वो तो बाय डिफॉल्ट ही आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपको जैसे मान लो हम्म, फ्रीक्वेंट बेसिस पे एक्सेस करना है तो टियर चेंज कर दो, तो थोड़ा कॉस्ट में फर्क पड़ेगा, जैसे मैंने अभी तो करके सर दिखाया था। 60 दिन अगर पूरे हो गए, हमने कूल में रखा हुआ है हम्म। और फिर हम उसका टीयर चेंज कर रहे हैं, तो किसका पैसा लगेगा सर उसमें? फिर जैसे हॉट में डाल दिया, अब हॉट में डाल के एक्सेस कर रहे हो तो हॉट का लगेगा फिर। तो सर वो करने देगा? 60 दिन तो हो गए सर। हाँ, तो करने तो देगा ना, वो टीयर कभी भी चेंज कर सकते हो, उसके लिए कोई डेज वाला रेगुलेशन नहीं है, वो रिकमेंडेशन है कि अगर कोई ऐसा डेटा है जो 60 डेज तक आप एक्सेस नहीं कर रहे हो तो उसको कोल्ड में डाल दो, ऐसा माइक्रोसॉफ्ट बोलता है। आप 60 डेज तक ज़्यादा भी रखोगे तब भी कोई ऐसा इशू नहीं है, आप 1 ईयर के लिए कोल्ड में रख लो। और किसी भी टाइम आपको लगता है कि मैं टीयर चेंज करना चाहता हूँ तो कर दो। जिस दिन टीयर चेंज करोगे उस दिन और उस टाइम से उस पर्टिकुलर टीयर का चार्ज एप्लीकेबल होगा। उससे पहले तक का जो बिल होगा उसमें जो पुराना टीयर रह चुका है उसका बिल ऐड होगा फिर। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल अभी अभी के 10 दिनों में मैंने हॉट टीयर में डेटा रखा, 11वें दिन मैंने क्या करा, उसको कूल में ट्रांसफर कर दिया। सो स्टार्टिंग के 10 दिन का जो बिल होगा वो हॉट टीयर के बेसिस पे जनरेट होगा डेटा रखने का। अगर मैंने इस दौरान में डेटा एक्सेस भी किया है तो डेटा एक्सेस का भी चार्ज उसमें ऐड होगा। 11वें डे पे मैंने उसको कूल में ट्रांसफर किया, सो कूल में स्टोरेज की कॉस्ट कम लगती है, सो 11वें डे से कूल की स्टोरेज कॉस्ट कम हो जाएगी। बट उसी बीच में अगर मैंने उसको एक्सेस किया है तो एक्सेस कॉस्ट भी और एक्स्ट्रा ऐड होगी, तो ऐसे करके बिल कंप्यूट होगा।
तो Clear? सर जी जैसे कि हम एक्सेस करने वाले, जैसे कि मैं 11वें दिन से उसको कूल में कर दिया, और कूल में हमने कर देने के बाद कम से कम 30 दिन हमने उसको ऐसे ही रखा ताकि हम्म, हमारी स्टोरेज की कॉस्ट कम आए। हम्म, ठीक है सर। और हमें हम्म। उसकी जरूरत पड़ रही है डेटा की, तो मैं टीयर चेंज करके उसको हॉट से ले सकता हूँ, मतलब एक्सेस। हाँ हाँ, कर सकते हो। तो सर वो मतलब एक्सेस का वो उसका तो चार्ज नहीं लगेगा ना उसमें मेरे को, क्योंकि वो मैंने तो यूज ही नहीं कूल में। हॉट में लगेगा फिर। अच्छा अच्छा। तो कूल वहां में पर तो यूज उसका ही नहीं पैसा किया देना तो पड़ेगा। एक्सेस का चार्ज लगेगा ही नहीं। एक्सेस का चार्ज तब लगेगा जब हम्म। आपने एक्सेस किया है। आप किसी भी टीयर में डेटा को एक्सेस नहीं कर रहे हो तो एक्सेस के चार्ज ऐड होंगे ही नहीं आपके। तो मतलब ऐसा कर सकते हैं, मतलब हम ये थोड़ा सा स्मार्ट ये खेल रहे थे, जैसे कि उसको कूल में रख करके और उसका स्टोरेज हम घटा दें, मतलब अमाउंट घटा करके फिर उसमें हॉट में जाके एक्सेस कर ले उसको हाँ, जब भी वो जरूरत पड़े। कर सकते हो। जब एक्सेस करना होगा तो कन्वर्ट कर दो, कोई इशू थोड़ी है। अभी मैंने करके तो दिखाया था, किसी भी टाइम सर कन्वर्ट हो जाता है। आपने सर सेम टाइम क्या, मैंने ये पूछा कि 2-3 महीने हो तो गए उससे उससे भी तो कोई फर्क उस। नहीं पड़ेगा, कभी भी कर दो। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। बस वो जो आर्काइव टीयर है, आर्काइव टीयर के केस में जो है टाइम एप्लीकेबल हो जाएगा कि उसको रिहाइड्रेट करोगे तो उसमें 15 आवर्स 20 आवर्स का टाइम लग जाता है। बाकी ये तो ऑन द स्पॉट हो जाएंगे। अगर इनमें से कोई भी टीयर में आप कन्वर्जन करते हो तो ऑन द स्पॉट कन्वर्जन हो जाता है। सो कोई डेज का कोई रोल नहीं है। जिस डे पे आप वो टीयर कन्वर्ट करोगे उस डे पे उस पर्टिकुलर टीयर के चार्जेस एप्लीकेबल हो जाएंगे। ओके। जी सर। सो वन ऑफ द वीएम इज ऑल्सो डिप्लॉयड नाउ। अब एक काम करते हैं, वीएम का रिमोट लेते हैं एंड लेट मी कनेक्ट वन ऑफ द फाइल शेयर। इसके अंदर एक फाइल शेयर कनेक्ट करते हैं। Meanwhile, let me copy the script from the file share. So file share पे जाओ, go to the overview, click on connect, and from here let me copy the script. So I will connect with Y drive, show a script, copy, go to the VM, and here we need to open the PowerShell. So let's wait. Now let's open the PowerShell. So I will copy paste that script, enter. So now it is validating and checking everything. And meanwhile the script is running, let me create some files. कुछ डेटा बना लेते हैं पहले तो. So I will create one file A. Inside the file A, I will write this is my important file to upload. So this is my important data.
save. Now let's see the progress. So connectivity is done. Now if you go to the file explorer, so you should be able to see your network drive. If you go to this PC, there is a file share connected with the capacity of 100 TB. This is right now blank. Let me upload this file inside this file share. So the file has been uploaded. Now if you go to the cloud portal, so you should be able to see this data. If you go to the browse, the data is available. आ गया data यहाँ पे. Now there is one option which is called snapshot. So snapshot is like a instant backup. Instant backup की तरह होता है snapshot. So what is the usefulness of this? मान लो ये कोई फाइनेंस की फाइल थी और लेट्स से इट इज अ कोडिंग फाइल. डेवलपर ने कोड करके अपलोड कर दिया यहाँ फाइल शेयर में. सो कोड लिखा हुआ है इसके अंदर. नाउ व्हाट वी कैन डू, डेवलपर हैज गिवन अस द इंस्ट्रक्शन. डेवलपर ने बोला कि यार आई एम वर्किंग ऑन ए वेरी इंपॉर्टेंट कोड, आई एम राइटिंग ए कोड फॉर द एप्लीकेशन, एंड अभी एक पेज का कोड मैं लिख चुका हूँ. सो वन पेज कोड हैज बीन रिटन एंड अपलोडेड इनसाइड द फाइल शेयर. अपलोड भी हो चुका है. नाउ आई विल राइट द नेक्स्ट कोड. इसी फाइल के आगे मैं और भी कोड लिखना कंटिन्यू करूंगा. बट येस, देयर कैन बी चांसेस, ऐसा भी हो सकता है कि कोड लिखने के बाद देयर माइट बी सम बग एंड बिकॉज ऑफ दैट कंप्लीट कोड इज गोइंग टू बी ऑब्सोलीट. पूरा पूरा कोड खराब हो सकता है. ऐसा होता है इन द डेवलपमेंट फील्ड, दिस हैपन्स. सो व्हाट ऑप्शन इज देयर? डेवलपर हैज अपलोडेड वन ऑफ द कोड फाइल. उसने एक फाइल अपलोड करी जहाँ पे सब कुछ सही था. The code was very much tested, it was very well. उसने फाइल अपलोड कर दी. Now what he can do, he can take the snapshot of this code file. उसने इसका snapshot ले लिया. Snap is like instant backup. जैसे फोटो लेते हैं हम, instant backup, snap. So उसके बाद क्या हुआ, उसी सेम फाइल पे, इन द सेम फाइल, ये जो फाइल थी हमारी, in this same file, again the developer is राइटिंग द नेक्स्ट लाइन ऑफ द कोड. उसने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन ऑफ द कोड लिखना स्टार्ट किया. बट उसके बाद जब वो टेस्ट कर रहा था कोड को, सो देयर आर सम बग्स एंड बिकॉज ऑफ दैट कंप्लीट कोड फाइल हैज बीन करप्टेड. पूरी कोड फाइल करप्ट हो चुकी है. सो नाउ ही वांट टू रिस्टोर द फाइल टू द प्रीवियस स्टेट. अब उसको प्रीवियस स्टेट में रिकवरी करनी है कि अभी से पहले जो है डेटा ठीक था, अभी कोड डालने के बाद कुछ प्रॉब्लम आ गई. सो ही वांट टू रिकवर इट बैक. He want to roll back actually to the previous state. So in that condition, if we have the snapshot available, we can always do that. So development codes के time पे तो खासकर बहुत बार snapshot लिया जाता है. And snapshot अगर बहुत normal सा है, like once in a while if we are taking it, so the cloud admin will be responsible for it. उसको टिकट आ जाएगी कि snapshot ले लो. तो ये जो starting के engineers होते हैं level 1 level 2, so they can take the snapshot. इफ इट इज ऑन रेगुलर बेसिस, अगर डेवलपर रेगुलर बेसिस पे कोड अपलोड कर रहा है, बार बार उसको स्नैपशॉट्स की रिक्वायरमेंट होती है, सो तब टिकट नहीं आती जनरली. सो वी प्रोवाइड द एक्सेस ऑफ द फाइल शेयर टू द डेवलपर. तो उसके पास कंट्रोल होता है, ही कैन टेक द स्नैपशॉट विद हिज ओन. बट अगर बहुत ही रेयर केस में होता है तब तो टिकट्स आती है, देन यू हैव टू टेक इट. अदरवाइज रेगुलर है कि बार बार स्नैपशॉट लेना ही पड़ता है. कोड अपलोड होता है, चेक होता है, टेस्ट होता है, फट जाता है, तो उस केस में then the snapshot can be taken by the developer itself. So how to take the snapshot? So I have one file uploaded in the file share. I can go to the snapshot option. I can simply click on add snapshot. कुछ भी यहाँ पे कमेंट लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया right now. मतलब डेट डालते हैं वैसे तो जनरली वी कीप द डेट एंड टाइमिंग, बट वो आप अपने हिसाब से डेट टाइमिंग डाल लेना. चलो डाल ही देते हैं. It will become standardized then. So I will give 13th of April 25, 10, 14. ये अभी का टाइम मैंने डाल दिया और वहाँ पे 10, 14 भी नहीं होता. 22, 14. Now okay. Now we have one snapshot ready. ये अभी का snapshot आ गया. ये seconds है ये वाले. So forget about it. Now what happened? The developer went to this file और उसने क्या करा, यहाँ पे एक नेक्स्ट लाइन लिख दी, कोड लिख दिया. मान लो दिस इज माय न्यू लाइन ऑफ कोड. सेव हो गया.
and now this data has been updated into the cloud share. यहाँ पे वो आ चुका होगा. If you go to the browse, this is the file. If you open this, so you can download and you can just read the contents about it. आप इसके contents को यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो. Otherwise, from here also you can just open and read the content. Now what happened? Now the file has been corrupted or data has been deleted. मान लो ये data delete हो गया या corrupt हो गया. So if you want to recover it back to the previous stage, you can always refer the snapshot. Snapshot में जाके, if you check this snapshot, if you open this, so there will be option to recover it back. इस file का snapshot पड़ा हुआ है. The size was 29 bytes. If you just click on these lines, there is option of restore. So you can restore. ये कह रहा है कि कॉपी रखना चाहते हो, मतलब ये डेटा भी पड़ा रहे, इसके साथ साथ एक कॉपी भी आ जाए उसी प्रीवियस वाले की, देन यू कैन चेक दिस. फिर एक नई फाइल का नाम दे दो, रिकवर कर लो. बट इफ यू वांट टू रिप्लेस, ओवरराइट करना है कि पुराने वाली फाइल में ओवरराइट हो जाए, देन चेक दिस बॉक्स एंड ओके, नाउ इट विल बी ओवरराइट. सो नाउ इफ यू गो टू दिस फाइल, इफ यू ओपन दिस वन, सो माई डेटा इज रीस्टोर्ड बैक, रोल बैक हो गया है. अब तो नया कंटेंट हट गया वहां से. अगर ये डिलीट भी हो गई होती, स्टिल वी कैन रिकवर इट फ्रॉम द स्नैपशॉट एंड इट इज वैलिड अंटिल इट इज देयर ऑन द पोर्टल. जब तक पोर्टल पे रहेगा, जब तक आप खुद डिलीट नहीं कर दो, तब तक ये पड़ा रहेगा, तब तक आप इसको बार बार यूज करके रिकवरी कर सकते हो. सो इट इज नॉट गोइंग टू बी डिलीटेड अंटिल एंड अनलेस यू डिलीट इट मैनुअली. तो ये यहाँ पे रहेगा. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रिकवरी ऑप्शन दैट वी हैव इन एज्योर. बाकी इफ यू गो टू द कंटेनर, अंडर द कंटेनर, दिस इज माय कंटेनर. यहाँ से भी कोई डेटा डिलीट हो गया मान लो, जैसे अभी कोई पूछ रहा था, कौशिकी वाज आस्किंग आई गेस. तो कंटेनर का कोई डेटा डिलीट हो गया. इनसाइड दिस कंटेनर दिस ब्लॉब हैज बीन डिलीटेड. डिलीट हो गया. नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस शो डिलीटेड ब्लॉब्स. ये वाली फाइल डिलीट हुई है, जस्ट चेक दिस बॉक्स एंड रिकवर इट बैक. तो इसको चेक करके देन देयर इज ऑप्शन ऑफ रिकवरी. कहाँ गया रिकवरी का ऑप्शन, कहाँ गया, यस इट शुड बी हियर. ये 4 लाइंस पे क्लिक करो, अनडिलीट. नाउ इट इज रिकवर्ड. आ गया करंट ऑफ दिस एंड नाउ यू कैन सी योर डेटा बैक. So individual blobs can also be recovered, complete container can be recovered, complete storage account can be recovered, file shares can be recovered, individual file share data can be recovered, plus snapshot can be taken. So these all are the options under the recovery. ये सब recovery के option है. So storage account can be recovered within 15 days of threshold. Regarding the blobs, file shares, containers, the retention policies can be set as a soft delete by you. By default, it is for 7 days, but you can always modify them. So 7 days का होता है, आप उसको कम ज़्यादा करके 365 days तक ले जा सकते हो. So that's your choice. So you should know about this one also. This is also done. Now let's talk about the replication process. So let me open the document. Storage replication. So let's talk about the replication now. This is regarding the high availability. HA से related है ये. As we know, HA basically means high availability. You have a lot of data available in your storage account. ये जो आपका storage है, इसमें बहुत सारा data रखा हुआ है. Data is very critical for you. It is important for you as well. But because the data is available at the Microsoft data center, ये data कहाँ पे है? It is at the Microsoft data center. So anytime there can be problem. We cannot control the problems. That is also a data center. So there can be technical outages in the storage. There can be regional down scenario. There can be data center down scenario. Anything can happen. कुछ भी हो सकता है. If let's suppose the storage which is connected in the rack of the Microsoft data center, that rack has been impacted. So I would not be able to access my data now
बिकॉज द रैक इज ऑफलाइन. जहाँ पे ये स्टोरेज कनेक्ट है वो रैक ही ऑफलाइन हो गया. सेकेंड सिनेरियो कैन बी in the data center of UK South, where my storage account is available. If that data center location goes down, I will not be able to access my data. जहाँ पे ये फिजिकल डेटा सेंटर है यूके साउथ में, जहाँ पे ये स्टोरेज बना हुआ है, इफ दैट फिजिकल डेटा सेंटर गोज डाउन, आई विल नॉट बी एबल टू एक्सेस माई डेटा देन. सेकेंड सिनेरियो कैन बी, as you know, in all the regions there are maximum 3 data centers available. ये हमने availability zone में पढ़ा था. Maximum 3 physical data centers are there in most of the locations. Suppose all the locations have been impacted in the UK South, then again my data will not be accessible. So in most of the scenarios there can be problem. If the complete UK South region has been impacted, पूरा UK South ही नहीं चल रहा, again my data will not be accessible. So I have stored my data in the Azure storage account. I have trusted the Azure, but at the event of any kind of outage, at the event of any kind of failures, my data will not be accessible to me. And that's a challenge. That's a problem. वो एक problem है. And I need my data very badly. I need my data. So what I can do in this case, we can go with the replication rules. We can choose one of the data replication option, just like we had in VM. VM में था ना जैसे high availability के options थे. We had availability sets, availability zone, virtual machine scale set, Azure site recovery. So same options, same relevance options are there with the storage account also. So regarding the storage account, we have the replication as LRS. सबसे पहला option है LRS. Second option that we have is ZRS, or you can also call it ZRS. Z और Z दोनों pronunciations okay है. If you scroll down further, there is third replication type which is called GRS. And if you scroll further, there is one more replication type which is called RAGRS. So RAGRS is also known as Geo Zone Redundant Storage. So we have 4 replication methods when it comes to the Azure data replication or high availability. So during the creation of the storage account, you might have noticed that this option comes on the very first screen. In the redundancy, we have the option to select LRS, GRS, ZRS and GZRS. And I asked you to choose LRS option, but now let's discuss about them one by one. सबसे पहले LRS को discuss करते हैं, how the LRS is going to work. So if you have chosen the LRS option as a replication, अगर आपने ये choose कर लिया, so for example you have created one storage account in the UK South. आपने मान लो UK South में एक storage account बनाया, and if you click on this, so currently I have chosen the LRS option, locally redundant storage as a replication. So what will happen if you will choose the LRS? So in the UK South, in the same data center, just same data center है, same location, in the same data center of UK South, my storage account will be copied 3 times. मेरा स्टोरेज अकाउंट सेम डेटा सेंटर के अंदर में 3 बार कॉपी किया जाएगा एक ही लोकेशन के अंदर. So it will be copied 3 times like this. 3 copies of my storage will be created in the same data center. That is called LRS, and they will be in the different racks. वो तीनों अलग अलग रैक में होंगे. If one rack is failed, so only this storage will be impacted, rest 2 will be available to me. So this will ensure the high availability of my data. So that is LRS. And when you talk about the SLA of Microsoft regarding LRS, so it is 99.9999 and it is 11 nines. मतलब 99 के बाद 11 times जो है 9 आ रहा है. So this is the SLA of Microsoft. So एक साल में this means पूरे एक साल में there are 0.000000001% chances that the storage in the LRS will be impacted. मतलब it is very high SLA. 100% कोई नहीं देता, कभी नहीं देता, क्योंकि it is a technical field, but 99.11 times 9 SLA मतलब availability देना कि पूरे साल में 0.00 अगर आप 10 टाइम्स लिख के लास्ट में 1 लिखते हो तो इतने % चांस है कि आपका स्टोरेज डाउन हो सकता है. मतलब बहुत रेयर
इट्स वंस इन अ वाइल सिचुएशन इन ए ईयर। तो इतना तगड़ा SLA है इसका। एंड 3 कॉपीज विल बी अवेलेबल, सो ऑफ कोर्स एक कॉपी डाउन होती है तो 2 कॉपीज अवेलेबल है, so your storage will be available. But in case the complete physical data center goes down, ये जो data center है अगर यही down हो गया तो these 3 copies will not have any relevance then. मान लो पूरे data center में आग लग गई, there is a fire situation in the entire data center, so all the 3 copies are going to get impacted. It will not be available. So what is the solution? If you have more critical data that you cannot risk, then the second advanced option is GRS. आप ZRS या ZRS के ऊपर जा सकते हो, which is called zone redundant storage. Here what will happen? Here Microsoft is going to copy your data 3 times in 3 different physical data center. We call them availability zone. जैसे VM वाला ऑप्शन था. As I mentioned, in most of the regions, for example, in the UK South region, we have 3 data centers, 3 अलग अलग data center है, 120 miles के radius में होते हैं, अगर आपको flashback में याद आएगा तो 120 miles के radius में 3 data center बने हुए हैं, 1 copy will be here, another copy will be here, another copy will be here. So it will copy your storage account 3 times into 3 different regions. If one physical data center goes down, another physical data center in the region will be available. मतलब UK South का दूसरा data center available है and third data center is also available. So we have 2 copies ready. अगर एक copy down होती है एक particular physical data center की, so another 2 copies are ready. So this will ensure the high availability in case the physical data center goes down. And if I talk about the SLA, so इसका SLA देखो यहाँ पे 99.12 times 9, मतलब एक 9 बढ़ गया, वहाँ पे 11 टाइम 9 था, यहाँ पे 12 टाइम्स 9 है. सो 0.00012 टाइम लिखने 11 टाइम्स लिखने के बाद लास्ट में 1% चांस बचते हैं कि एक साल में आपका स्टोरेज इम्पैक्ट होगा, अदरवाइज नहीं. सो इट्स वेरी वेरी माइन्यूट, बहुत ही छोटी सी डिटेल, इसका मतलब है नहीं होता. इफ बाय चांस यू हैव सुपर क्रिटिकल डेटा, यू कैन नॉट अफोर्ड एनी काइंड ऑफ डाउन टाइम, और मान लो ये तो यूके साउथ के तीनों डेटा सेंटर है ना, these 3 data centers are available in the UK South. If the complete UK South has been impacted, so all these 3 data center is going to get down. तब तो मेरा डेटा कहीं से भी एक्सेस नहीं होगा. Then what will I do? मैं क्या करूंगा? So we have one more advanced option. I can go with the GRS, Geo Redundant Storage. ये आपका रिलायंस वाला जियो नहीं है, it is GEO, Geographical Redundant Storage. If you scroll down, so how the geographical redundant storage is going to work? It is going to work as a paired region concept. ये paired region में काम करता है. Paired region का मतलब है आपने यूके साउथ में अपना स्टोरेज अकाउंट बनाया, अब यूके साउथ का एक पेयर्ड रीजन होगा माइक्रोसॉफ्ट का, विच इज यूके वेस्ट. यूके साउथ जो है यूके वेस्ट के साथ कनेक्टेड है, ये आपको मैंने पहले भी बताया था पेयर्ड रीजन के कॉन्सेप्ट में. So by default, both of the regions are connected together because of the pairing. इनके बीच में pairing होती है. So geo redundant storage क्या करता है? When you will choose the GRS option, so आपका जो storage account है UK South के physical data center में the 3 copies of the storage will be created. 3 कॉपी क्रिएट होगी, just like LRS concept. मतलब सेम डेटा सेंटर के अंदर एक ही लोकेशन में 3 कॉपीज अलग अलग रैक में बनेगी. So if one rack goes down, we have 2 copies available. Then what will happen? In another paired region, जैसे UK South का paired region है UK West. So UK West के अंदर again in some different data center, 3 copies will be created in one data center. So if the complete UK South region goes down, पूरा UK South down होता है, these copies are not available, then the data can be retrieved from another paired region which is UK West. UK West active है और वहां से आपके डेटा की कॉपीज अवेलेबल हो सकती है. So data will be available. That is called GRS option. And here the SLA will be 99.16 times 9. मतलब एक साल में फिर से बढ़ गया. तो वहां पे 11, 12, यहाँ पे सीधा 16. This is the GRS. अब इससे ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं. अब ये तो नहीं बोल सकते ना आपकी पूरी दुनिया को ही आग लगा दो, देन व्हाट विल हैपन. तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है माइक्रोसॉफ्ट के पास भी और मेरे पास भी नहीं.
कंट्री में कुछ प्रॉब्लम आती है, वी हैव द GRS ऑप्शन, द डेटा कैन बी कॉपीड टू द पेयर्ड रीजन। अब कंट्री के अलावा आप बोलोगे पूरे के पूरे यूनिवर्स में ही प्रॉब्लम आ गई, सो देयर इज नो सॉल्यूशन फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट येट। अभी तक कोई सॉल्यूशन आया नहीं है कि पूरी दुनिया ही जल गई तो डेटा कहाँ रखूंगा, क्योंकि दुनिया के बाद कुछ बचा ही नहीं। Now there is one more advanced option which is called GZRS, Geo Zone Redundant Storage. Now what is this? ये क्या है? So ये है तो यही, ये GRS ही होता है, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है। एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी क्या है? सी, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी मीन्स, एक तो अगर आपने GZRS का ऑप्शन चूज कर लिया, इफ यू विल चूज द GZRS ऑप्शन, तो वही वाली बात, यूके साउथ में आपका डेटा है, यूके साउथ में आपके डेटा की 3 कॉपी बनाएगा इनटू 3 डिफरेंट फिजिकल डेटा सेंटर, पहला यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यूके साउथ के अंदर ही, विच इज GRS। जैसे GRS काम करता है बिल्कुल वही होने वाला है यूके साउथ में। फिर क्या करेगा, यूके साउथ का जो पेयर्ड रीजन है विच इज यूके वेस्ट, यूके वेस्ट में अगेन आपके पूरे स्टोरेज को 3 टाइम्स कॉपी कर देगा वहां के एक फिजिकल डेटा सेंटर में, लाइक LRS। तो अगर पूरा पूरा यूके साउथ के 3 डेटा सेंटर डाउन भी होते हैं, स्टिल योर डेटा इज अवेलेबल फ्रॉम द यूके वेस्ट रीजन। इसके अलावा इसका एक और एडवांटेज है, अनदर एडवांटेज इज कि अगर मान लो कुछ डाउन नहीं भी होता है, इफ नथिंग इज डाउन, एक तो होता है कि कुछ डाउन होगा तब जाके मैं सेकेंडरी रीजन से, पेयर्ड रीजन से डेटा एक्सेस करूंगा, राइट। बट एक होता है कुछ डाउन नहीं हुआ, नहीं डाउन हुआ, बट स्टिल इट हैज वन फीचर। सो व्हाट हैपेंस इन द GZRS, GZRS में क्या होगा, एक टाइम पे दोनों ही रीजन्स एक्टिव रहेंगे। बाकी सारे सिनेरियोज में GRS में क्या था, ZRS में क्या था कि अगर कोई इम्पैक्ट होगा तभी दूसरे वाले डेटा सेंटर एक्टिव होंगे, तभी वो आपको डेटा दे पाएंगे। बट इन सिनेरियोज में क्या है, यहाँ पे प्राइमरी मतलब यूके साउथ और यूके वेस्ट एक टाइम पे दोनों ही काम कर रहे होंगे। जो कस्टमर्स, जो यूजर्स यूके साउथ के नियर बाय है, व्हेन दे विल एक्सेस द डेटा, तो उनकी क्वेरीज सीधा यूके साउथ के अवेलेबल स्टोरेज तक पहुंचा दी जाएगी एंड दे विल रिट्रीव द डेटा। जो यूजर्स मान लो यूके वेस्ट के नियर बाय रहते हैं, अगर हम GZRS वाला ऑप्शन नहीं चूज करते हैं, नॉर्मल GRS चूज करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, सेकंड रीजन विल नॉट बी एक्टिव एट ए टाइम, ओनली वन रीजन विल बी एक्टिव एट ए टाइम। तो अगर कोई यूके वेस्ट के नियर बाय रहता है तो उसकी क्वेरी भी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आती थी यूके साउथ में। बट इफ वी हैव द GZRS ऑप्शन, सो GZRS में क्या होता है कि जो लोग यूके वेस्ट के नियर बाय रहते हैं, बाय डिफॉल्ट उनकी क्वेरीज को यूके वेस्ट के स्टोरेज तक ही पहुंचाया जाता है, सो दैट वी कैन रिड्यूस द लेटेंसी एंड इंक्रीज द परफॉर्मेंस, तो स्पीड अच्छी आएगी। और जो लोग यूके साउथ के नियर बाय में हैं, उनकी क्वेरीज को यहाँ के स्टोरेज के पास भेजा जाता है, सो दैट दे कैन एक्सेस द डेटा। सो बोथ द स्टोरेज विल बी एक्टिव एट ए टाइम, इट इज रीड एक्सेस, दैट इज कॉल्ड रीड एक्सेस। और अगर ये डाउन हो भी गया, अगर ये डाउन हो गया, माई कॉपी इज अवेलेबल हियर, मेरी कॉपी यहाँ पे अवेलेबल है, तो होता क्या है, अगर आप GRS की बात करो, GRS में अगर एक पूरा रीजन डाउन हो गया यूके साउथ, तो यूके वेस्ट में डेटा तो है, बट एकदम से सडन एक्सेस नहीं होता वो डेटा। माइक्रोसॉफ्ट टेक्स द टाइम टू इनेबल द एप्लीकेशन फ्रॉम द बैक एंड, सो कुछ मिनट्स का टाइम, मतलब 15 मिनट्स 20 मिनट्स का टाइम लग सकता है उस डेटा को बैक एंड से एक्टिव करवाने के लिए, कि वो डेटा सामने वाले को एक्सेस हो सके। बट इन द इवेंट ऑफ GZRS, अगर आपने GZRS वाला ऑप्शन ले रखा है, तो उस टाइम पे दोनों के दोनों एक टाइम पे एक्टिव है। अगर प्राइमरी रीजन डाउन हो भी गया, स्टिल आपका जो यूजर है, आपके जो यूजर यहाँ बैठे हुए हैं, अगर वो डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो डेटा उनका सेकेंडरी रीजन से एक्सेस हो जाएगा, उनके पास रीड एक्सेस रहेगा कुछ टाइम के लिए। मतलब वो जो 15-20 मिनट्स का टाइम होता है, उस टाइम पे वो डेटा को रीड तो कर सकते हैं एक्सेस करके, जैसे ही वो टाइम पूरा हो जाता है देन दे विल बी एबल टू मॉडिफाई एज वेल। बट जो GRS का ऑप्शन है, GRS में अगर एक प्राइमरी रीजन डाउन हो गया, तो यूजर्स जो स्टोरेज पे कनेक्टेड थे, दे विल लूज द कंट्रोल। और स्टोरेज की कॉपी तो है हमारे पास सेकेंडरी रीजन में, बट वो ऑल ऑफ सडन एक्सेस नहीं होती, उसके लिए 15 to 20 मिनट्स का SLA लग जाता है फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट टू कन्वर्ट इट, देन दे वुड बी एबल टू एक्सेस।
बट GZRS में क्या होगा, बोथ ऑफ द स्टोरेज विल बी एक्टिव एट द सेम टाइम, रीजन्स विल बी एक्टिव। सो अगर ये डाउन भी हो जाता है तो यूजर्स जो है दूसरे रीजन में कनेक्ट करके अपने डेटा के साथ रीड एक्सेस बना सकते हैं, एंड वंस द थ्रेशोल्ड इज कंप्लीटेड तो फिर उनके पास फुल एक्सेस भी आ जाएगा। दैट इज GZRS ऑप्शन, एंड वी ऑल्सो कॉल इट RAGRS। इसी को हम RAGRS के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज हियर वी गेट द रीड एक्सेस जियो रिडंडेंट स्टोरेज काइंड ऑफ ऑप्शन। तो इसी को आप GZRS बोलते हो, इसी को आप RAGZRS भी बोलते हो, रीड एक्सेस। So this is how it works, and these are the 4 types of replication. It is sure to be asked in the interview. ये भी पूछा जाएगा ही जाएगा। Now practical बहुत easy है इसका। During the storage account creation, you have the option to choose the replication type, जैसा कि मैंने दिखाया था आपको। यहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि आप कौन सा स्टोरेज में रेप्लिकेशन यूज करना चाहते हो। आफ्टर द क्रिएशन, अगर आपने कोई रेप्लिकेशन चूज कर लिया है, in my case I have chosen app storage 001 is my storage account and I have chosen LRS। मैंने ये चूज कर लिया है, but I want to change it। मेरा बाद में मूड चेंज हो गया and I want to change it। There are some important data, so I want to convert it to GRS or ZRS or GZRS। so मेरा मूड चेंज हो गया। So you can always change it। You can just go to the left side। Under the left side there is the option of redundancy in the data management। Just go here। Right now you can see the data is available in the UK South। उसमें 3 कॉपी चल रही होगी, अंदर LRS बना हुआ है और यहाँ पे लोकेशन दिखा रहा है। देखो UK South के इस पर्टिकुलर लोकेशन में आपका डेटा सेंटर है और उसके अंदर 3 कॉपी होगी। If you want to change it, just choose the drop down and always change it। Suppose I want to make it to GRS, तो मैं GRS choose करूंगा। If I will choose the GRS, then I can click on save। Now it will copy my data into the peered region as well। तो इसने स्टार्ट कर दिया है। देखो यूके साउथ में भी एक कॉपी है और उसकी एक कॉपी यूके वेस्ट में भी इसने रख दी है। एंड नाउ यू कैन सी देयर आर 2 रीजन्स, एक ग्रीन वाला एक ब्लू वाला, बहुत ही नियर बाय एक दूसरे से, बिकॉज दे आर द पेयर्ड रीजन। सो 3 कॉपी यहाँ पे चल रही होगी और 3 कॉपी यहाँ पे चल रही होगी इन द यूके वेस्ट। इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट टू द लेट्स से ZRS अगेन, सो यू कैन नॉट डू इट ऑन द स्पॉट, क्योंकि अभी जो है डेटा कॉपी का प्रोसेस चल रहा है। कन्वर्ट तो हो गया है बट यहाँ का डेटा यहाँ कॉपी हो रहा है, सो टाइम लेता है वो। वंस दिस नोटिफिकेशन विल बी रिमूव्ड, देन यू कैन चेंज इट टू द GRS एज वेल। तब आप इसको चेंज कर सकते हो। बट GRS से अगर आपको एडवांस जाना है RAGRS के अंदर, देन यू कैन गो। और अगर सिर्फ GZRS ही यूज करना है जिसमें कि आपको रीड ओनली एक्सेस नहीं मिलेगा, मतलब इस टाइप से आपको 3 कॉपी यहाँ मिलेगी इन द 3 डिफरेंट डेटा सेंटर और एक कॉपी यहाँ मिलेगी इन द पेयर्ड रीजन। बट अगर आपको रीड ओनली एक्सेस का ऑप्शन यूज नहीं करना है, RAGRS वाला नहीं करना, कि अगर ये डाउन हो गया तो इसमें से डेटा रिट्रीव करने में टाइम लगेगा, देन यू कैन गो विद द नॉर्मल GZRS ऑप्शन, जिसमें रीड का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, मतलब दोनों स्टोरेज एक टाइम पे एक्टिव नहीं रहेंगे। बट इफ यू विल गो विद द RAGRS ऑप्शन, सो हियर both the storage will be active at the same time। so कॉस्ट सबकी अलग अलग है। सबसे हाईएस्ट कॉस्ट जो है वो आपके GRS में, RAGRS में एंड GZRS में है। एंड इफ यू कंपेयर ऑल दीज 3 ऑप्शंस, सो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कॉस्ट RAGRS के अंदर आती है, क्योंकि इसमें आपको दोनों स्टोरेज एक टाइम पे एक्टिव भी मिलेंगे और रीड एक्सेस भी मिल जाएगा। सो एनी टाइम इफ यू वांट टू चेंज, यू कैन जस्ट गो, चूज, टाइप यस एंड यू कैन चेंज। और एक बार अगर एप्लीकेशन लगा दिया आपने, तो जब तक वो प्रोसेस में है, अभी तो कोई डेटा था नहीं, इस वजह से बहुत जल्दी हो गया, इट गॉट कन्वर्टेड वेरी इजीली। बट अगर एक बार एप्लीकेशन चल गया है कंपनी में एंड इफ वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा, इट कैन नॉट बी कैंसल्ड। पहली बात तो उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते, और दूसरा कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। यहाँ पे तो 1-2 फाइल पड़ी थी, दैट इज द रीजन इट गॉट कन्वर्टेड वेरी इजीली। कंपनी में इट टेक्स टाइम, इट टेक्स आवर्स, इट टेक डेज ऑल्सो, डेज भी लग जाते हैं। कन्वर्जन के टाइम पे कोई भी डेटा आपका लॉस्ट नहीं होगा, नो डेटा विल बी इम्पैक्टेड। टाइमिंग्स कैन बी टाइम टेकन डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ डेटा, तो टाइमिंग बहुत लग सकते हैं, उसके लिए कोई गारंटी नहीं है। डेटा लॉस नहीं होगा, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट गारंटी। एंड वंस द प्रोसेस ऑफ द एप्लीकेशन इज स्टार्टेड, यू कैन नॉट अनडू, आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते।
अगर आपने ZRS को LRS में कन्वर्ट करने लगा दिया तो जब तक ये पूरा कन्वर्ट नहीं होगा तब तक आप उसको वापस से अगर चेंज करना चाहो ZRS में, सो यू कैन नॉट। पहले पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, देन ओनली यू कैन ऑलवेज चेंज इट। तो ये एक लिमिटेशन है दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो आई वांट टू चेंज इट टू LRS सपोज, तो सेव पे क्लिक किया। तो यहाँ पे तो बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाएगा बिकॉज देयर इज नो डेटा, बट इन द सिनेरियोज इट कैन टेक टाइम। देखो यहाँ तो हो गया। अब एक ही डेटा सेंटर में कॉपी है, इसमें 3 कॉपी बनी होगी एज पर द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। मतलब माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा है ऐसा, हमने जाके नहीं देखा है बट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे ऐसा ही बोल रहा है। सो दिस वाज द फेल ओवर ऑप्शन। Topic was very easy. We had a lot of practicals and this is completed now. कुछ और ऑप्शन दिखा देता हूँ आपको छोटे मोटे, जैसे कि एक स्टोरेज ब्राउजर करके ऑप्शन होता है। सो इन द स्टोरेज ब्राउजर यू कैन गेट द ओवरव्यू ऑफ योर कंप्लीट डेटा। मतलब यहाँ पूरा पूरा डैशबोर्ड बन जाता है, जैसे आप लोग यहाँ से डेटा चेक करते हो ना जाके, कंटेनर, फाइल शेयर, क्यूज एंड टेबल। सिमिलरली यू कैन गो टू द स्टोरेज ब्राउजर और यहाँ से भी दिख जाता है। और यहाँ पे पूरे नंबर ऑफ लिस्ट भी आ जाती है कुछ टाइम के बाद, जैसे कुछ 1 और 2 डेज के बाद यहाँ पे नंबर भी आने लग जाएगा कि नंबर ऑफ कंटेनर कितने बने हुए हैं आपके स्टोरेज में, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने अपलोडेड है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा व्यू आने लग जाता है, डैशबोर्ड व्यू। एंड इफ यू वांट टू सी द डेटा, तो यहाँ से भी आप लोग जाके देख सकते हो। आप इस पे क्लिक करके इसके अंदर क्या क्या है, तो सब कुछ यहाँ से भी दिखा रहा है। कंटेनर के अंदर क्या क्या है, यू कैन सी द डेटा। फाइल शेयर में सब कुछ दिखेगा, तो यू कैन सी एवरीथिंग। क्यूज में क्या क्या है, टेबल्स में क्या क्या है, सो यू कैन हैव ए व्यू फ्रॉम हियर। जस्ट गिव मी 1 second। यस पूजा। सर कुछ प्रैक्टिकल्स हैं लाइक एप्लीकेशन गेटवे सर, वो एक्चुअली मुझे थोड़ा हार्ड लग रहे हैं सर, बट वो इम्पोर्टेंट भी है जैसा कि आपने बोला। तो सर जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे तब तो मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था, बट अब मुझे थोड़ा हार्ड लग रहा है सर, तो मैं उसे सर कैसे मतलब ठीक कर सकती हूँ? पहले तो वीडियोस देख लो 1-2 बार प्रैक्टिकल की। उसके बाद जब प्रैक्टिकल करो तो वीडियोस देख के फॉलो करना, एक बार बिना समझे फॉलो करना प्रैक्टिकल। जब प्रैक्टिकल हो जाएगा उसके बाद फिर समझ के दोबारा पूरी वीडियो देख के फिर दोबारा इम्प्लीमेंट करना, तब समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशन गेटवे थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो उसको दो यस तीन सर। बार देखना पड़ेगा। तो एक बार बस देख लो, कुछ करना मत।
दूसरी बार देख देख के स्टेप फॉलो करके प्रैक्टिकल कर लेना बिना समझे, जो जो मैं कर रहा हूँ वो कर लेना, बस बिना समझे, हो गया। तीसरी बार दोबारा से पूरी वीडियो को कंप्लीट देख के फिर प्रैक्टिकल करना, फिर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ओके सर, एक्चुअली सर बीच बीच में मैं थोड़ा स्टेप्स भूल रही हूँ उसके, मुझे ऐसा लग रहा है सर। नहीं, वो देख देख के करो, स्टेप अभी याद भी नहीं आएंगे, इट इज़ वेरी लेंथी टॉपिक, तो उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार, इट्स नॉट ए वन डे जॉब। वो स्टेप याद नहीं होते उसके, वो बार बार प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू रिमेम्बर इट। ओके सर। तो एक तो ये टॉपिक हो गया हमारा। नाउ देर इज वन मोर ऑप्शन इन स्टोरेज अकाउंट, ये सब एक्स्ट्रा है थोड़ा, लेट मी टेल यू। सो देर इज वन ऑप्शन विच इज कॉल्ड रिसोर्स विजुलाइजर। सो इफ यू गो टू द रिसोर्स विजुलाइजर, so it will give you the डायग्रामेटिक ओवरव्यू की चीजें कैसे बनी हुई है। सो ये बता रहा है, देखो एक आपने स्टोरेज अकाउंट बना रखा है, इसके साथ अगर कुछ कनेक्टेड होता, कोई सर्वर कनेक्टेड होता, तो वो यहाँ पे दिखाने लग जाता। ये पूरा एक ग्राफ बना के दिखाता है कि सर्वर भी इस पे कनेक्टेड है या जो भी है। सो अकॉर्डिंगली यू कैन जस्ट क्लिक एंड इट विल डायरेक्टली टेक यू टू द रिसोर्स, आपको डायरेक्टली वहाँ पे लेके जाएगा। देर इज वन मोर ऑप्शन, ब्लॉब इन्वेंट्री। सो ब्लॉब इन्वेंट्री इज ए न्यू ऑप्शन जहाँ पे आप रूल लगा सकते हो। रूल मतलब आपने रूल लगा दिया कि यार ये इतनी पुरानी वाली जो ब्लॉब्स है, इस डेट के हिसाब से जो ब्लॉब्स है वो इस तरीके से मूव हो जाए, या फिर वो किसी फोल्डर में चले जाए। सो दैट काइंड ऑफ इन्वेंटरी रूल्स यू कैन डिफाइन। तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइफ साइकिल मैनेजमेंट पॉलिसी से काम हो जाता है, बट अगर आपको वर्जन्स वगैरह डिफाइन करने हैं देन दिस ऑप्शन इज यूजफुल। बाकी इन द नेटवर्किंग यू कैन सी by default the access is enabled from all the networks, but if you want to make it more secure कि मतलब कंपनी के अलावा कहीं से भी एक्सेस ना हो, सिर्फ कंपनी के अंदर से ही एक्सेस हो स्टोरेज, और कहीं से भी मतलब चाहे वो सैस दे दो उस बंदे को, चाहे उसको एक्सेस की दे दो, चाहे जो रेडी ऑथेंटिकेशन ऑप्शन दे दो, हर जगह से एक्सेस ना हो। ओनली द एक्सेस शुड बी देयर फ्रॉम ए लिमिटेड इन्वायरमेंट। जैसे अभी मैंने क्या किया, कल मैंने सैस का ऑप्शन यूज करके या एजोर रेडी ऑथेंटिकेशन या फिर एक्सेस की यूज करके अपने पर्सनल लैपटॉप पे एजोर का स्टोरेज अकाउंट कनेक्ट कर दिया था। बट आपको और सिक्योर करना है कि कंपनी के नेटवर्क के अंदर ही ये खुले, मतलब कंपनी के ही डिवाइस पे खुले, कंपनी के नेटवर्क में ही खुले। वीपीएन में है तो भी खुल जाए, बट उसके बाद ना खुले। सो यू कैन मेक इट मोर रोबस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन है, देखो, इनेबल फ्रॉम सेलेक्टेड नेटवर्क्स, आप ये करके देन यू कैन चूज द वीनेट कि किस वीनेट में खुलना चाहिए। तो अगर आपने ये कर दिया तो सिर्फ वहीं खुलेगा। सो ऐड एग्जिस्टिंग वीनेट करके इफ यू विल चूज द वीनेट, ये मेरा वीनेट है, अगर आपने ये चूज कर लिया फिर उसका सबनेट चूज कर लिया, तो जो भी वर्चुअल मशीन्स, जो भी वीएम्स इस पर्टिकुलर वीनेट से बिलोंग करती है, सिर्फ उसी वीनेट के अंदर, मतलब उसी वीएम के अंदर जाके यू कैन कनेक्ट विद द स्टोरेज यूजिंग सैस, यूजिंग एक्सेस कीज और यूजिंग एजोर रेडी ऑथेंटिकेशन। उसके अलावा कहीं पे भी नहीं खुलेगा। सो दिस इज द काइंड ऑफ सेटिंग विच विल बी देयर इन द कंपनी। कंपनी में ये वाली सेटिंग्स होती है, वो ऐसे ऑल एक्सेस नहीं देते किसी को भी। ऐसे तो कोई भी कहीं भी एक्सेस कर लेगा एक्सेस की लेके, मतलब मेरे अगर मैं एडमिन हूँ, मेरे पास एक्सेस की है, मैं तो पर्सनल लैपटॉप पे भी एजोर स्टोरेज एक्सप्लोरर डाल के कंपनी का डेटा एक्सेस करके बैठ जाऊंगा। सो दे जनरली कीप इट सिक्योर। तो ये ऑप्शन इनेबल रहता है वहाँ पे, और वीनेट चूज रहता है, और कंपनी के ही वीनेट कनेक्टेड होते हैं, तो कंपनी के ही वीनेट इन्वायरमेंट के सर्वर से जाके या लैपटॉप से जाके यू कैन एक्सेस योर डेटा यूजिंग द ऑप्शंस। तो ऐसे नहीं कर पाओगे फिर आप। तो ये आप इनेबल कर दोगे तो सिर्फ ये वाला वीएम विच इज द पार्ट ऑफ माई वीनेट, इसी के अंदर आप सिर्फ डेटा एक्सेस कर सकते हो और कहीं नहीं कर पाओगे। मेरे लैपटॉप के ऊपर आप एक्सेस की वगैरह डाल के डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, इट विल नॉट वर्क देन। सो इट इज हाईली सिक्योर मेथड, ये इनेबल रहता है कंपनी के अंदर। सो दिस हैज टू बी इनेबल्ड। डिसेबल कर दिया तो कहीं से भी डेटा एक्सेस नहीं होगा फिर, मतलब कुछ टाइम के लिए आपको एक्सेस ही डिसेबल कर देना है कि सिर्फ पोर्टल पे आके ही डेटा एक्सेस हो। जैसे यहाँ से मैंने डिसेबल कर दिया, सपोज यहाँ से डिसेबल्ड है, अब ना तो एक्सेस की से एक्सेस होगा ना सैस से होगा, किसी से भी नहीं होगा, इट इज डिसेबल नाउ। अब सिर्फ पोर्टल पे आके एक्सेस होगा, पोर्टल पे जाके मैं कंटेनर्स वगैरह पे जाके मेरे को जो भी डेटा चेक करना है यहाँ से दिख जाएगा। अब ये जो कंटेनर है ना, अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्लॉब में जाओगे, दैट ब्लॉब डेटा विल नॉट बी एक्सेसिबल अगर आपने इसको डिसेबल कर दिया तो। सिर्फ बाहर बाहर का जो ओवरव्यू होता है वो देख पाओगे, मतलब लिस्ट सर्विसेज देख पाओगे, अंदर का डेटा जो है वो भी नहीं देख पाओगे अगर आपने बाहर से डिसेबल कर दिया तो।
सो बाहर की लिस्टिंग चेक कर सकते हो कितने कंटेनर्स बने हुए हैं, बट इनसाइड दैट हाउ मेनी ब्लॉब्स आर देयर दैट यू कैन नॉट चेक। अगर आप फाइल शेयर पे जाओगे, देखो फाइल शेयर दिखाई देगा, इफ यू ओपन दिस, इसके भी ओवरव्यूज वगैरह दिख जाएंगे, एंड इफ आई गो टू द डेटा, तो डेटा नहीं दिखेगा, देखो, क्योंकि एक्सेस नहीं है। तो एक्सेस चाहिए होता है, और लिमिटेड एक्सेस होता है कंपनी में, डिसेबल तो नहीं होता खैर, बट कुछ स्टोरेज ऐसे होते हैं जो कि अब यूज में नहीं है, बट रखना जरूरी है, यूज में नहीं है, डेटा है उनके अंदर, बट वी हैव टू कीप इट फॉर द कंप्लायंस, तो उनको डिसेबल करके रखा जाता है, क्योंकि वो एक्सेस ही नहीं कर रहा कोई, तो उसको 1 साल या 2 साल के लिए रखना है, सो वी हैव टू कीप इट, सो दैट विल बी इन द डिसेबल्ड स्टेज। अदरवाइज बाकी सब लिमिटेड एक्सेस के साथ होंगे, ये वाले ऑप्शन के साथ, तो उनका वीनेट वहाँ पे एडिड रहेगा। तो ये सारे ऑप्शंस है। ये तो डिफॉल्ट ऑप्शन होता है कि पियरिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट के अपने खुद के बैकबोन पे होता है। फ्रंट डोर इज नॉट पार्ट, सो वी विल नॉट बी डिस्कसिंग अबाउट इट। ये भी एक लोड बैलेंसर का पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ AJ700 एंड AJ305, सो इम्पोर्टेंट है। और एक नया ऑप्शन आया है इसके अंदर, स्टोरेज मूवर, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ AJ305, जिसमें क्या कर सकते हो, आपको पूरा पूरा स्टोरेज ही मूव करना है। जैसे ऑन प्रीमाइसिस में स्टोरेज है आपका, उसमें बहुत सारा डेटा है, उसको उठा के मूव करना है क्लाउड के ऊपर, ऑन प्रेम का डेटा पूरा। सो यहाँ से आप मूवर क्रिएट करके पूरा पूरा डेटा माइग्रेट कर सकते हो क्लाउड के ऊपर। तो ये भी एक ऑप्शन है, इट इज ऑल्सो देयर। ये एक नया ऑप्शन है, ये पहले नहीं था, इट वॉज एडेड इन द ईयर ऑफ 2024। सो नया नया ऑप्शन आया है हाल फिलहाल ये। बाकी पार्टनर सॉल्यूशंस मतलब थर्ड पार्टी सॉल्यूशंस, आप कॉमबोल्ट का लेके या रूब्रिक का लेके या वीम का लेके, तो इसमें भी आप बैकअप्स रख सकते हो। दीज आर द थर्ड पार्टी सॉल्यूशंस। कि अगर आपको स्टोरेज का भी बैकअप कहीं और रखना है, कि आपको भरोसा नहीं है कि कल को एजोर ही डाउन हो जाए पूरा पूरा, तो मैं क्या करूंगा, तो एजोर के स्टोरेज का बैकअप भी आप इन जगह पे रख सकते हो। यू कैन कीप इट इन द कॉमबोल्ट, यू कैन कीप इट इन द रूब्रिक, वीम और वेरिटस। कंपनी में जो बैकअप सॉल्यूशन होता है ऑन प्रेम का, आप लोगों ने सुना होगा, वीम बहुत फेमस है, कॉमबोल्ट इज वेरी फेमस, तो ये दो तो बहुत ज्यादा फेमस है ऑन प्रीमाइसिस का बैकअप लेने के टूल्स है ये। तो ये मैंने बता दिया आपको। डेटा माइग्रेशन के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं एजोर स्टोरेज में। इफ यू क्लिक ऑन ब्राउज डाटा माइग्रेशन टूल्स, तो देखो एजो कॉपी करके एक टूल होता है, इट क्रिएट्स वन ऑफ द स्क्रिप्ट। एजो कॉपी मीन्स एजोर कॉपी, तो यहाँ पे आप ऑन प्रीमाइसिस का डेटा एजोर पे कॉपी करना चाहते हो, आप कर सकते हो। एजोर का डेटा एजोर के एक स्टोरेज से दूसरे स्टोरेज दूसरे रीजन में कॉपी करना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल यूजिंग द एजे कॉपी। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट बनानी पड़ती है, एंड दैट स्क्रिप्ट हैज टू बी रन इन द पावर शेल, तो इसके थ्रू डेटा ट्रांसफर हो सकता है। इट इज, ये सब AJ305 के टॉपिक्स है, बट यू शुड हैव सम थ्योरेटिकल ओवरव्यू की डेटा कॉपी करने के क्या क्या मेथड्स है एजोर में। सो एजो कॉपी है, स्टोरेज मूवर के थ्रू कर सकते हो, पावर शेल में स्क्रिप्ट बना के कर सकते हो, एजोर CLI में स्क्रिप्ट बना के कर सकते हो। एक ऑप्शन आता है डेटा फैक्ट्री। सो यूजिंग द डेटा फैक्ट्री यू कैन क्रिएट ए पाइपलाइन, मतलब आप ऑटोमेशन लगा दो कि इतने टाइम का जो भी डेटा है, ट्रिगर लगा दो, वो अपने आप ही क्लाउड के ऊपर स्टोरेज में मूव हो जाए। सो यूजिंग द डेटा फैक्ट्री यू कैन डू दैट। बाकी एजोर स्टोरेज जो नॉर्मल होता है, वहाँ पे जाके डेटा कॉपी पेस्ट कर लो, जैसे हम कर रहे थे। स्टोरेज एक्सप्लोरर के थ्रू आप डेटा कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जैसे कि ऑन प्रीमाइसिस के सर्वर में बहुत सारा डेटा है, यू हैव कनेक्टेड स्टोरेज एक्सप्लोरर, जैसे हमने किया था कल, सर्वर के अंदर स्टोरेज एक्सप्लोरर कनेक्ट किया, और जितना भी डेटा यहाँ पे रखा हुआ है उसको सीधा अपलोड करते चले जाओ एजोर स्टोरेज एक्सप्लोरर के थ्रू, एंड दैट विल गेट अपलोडेड टू द एजोर स्टोरेज अकाउंट। तो इसके थ्रू, ये तो हमने देखा ही है, ये तो नॉर्मल सा है। फिर रेस्ट एपीआई के थ्रू भी, रेस्ट एपीआई का मतलब है प्रोग्रामिंग करके भी आप एक प्रोग्राम बना लो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके, और उसके थ्रू भी पूरा पूरा डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हो, ब्लॉब, क्यूज, टेबल्स एंड फाइल्स का। एक डेटा बॉक्स करके आता है, डेटा बॉक्स इस तरीके से दिखता है, इट इज ए हार्डवेयर डिवाइस एक्चुअली। इस तरीके का डेटा बॉक्स आता है, लेट मी शो यू। ये होता है डेटा बॉक्स, आई हैव यूज्ड इट इन द रियल सिनेरियो एज वेल, मैंने इसको प्रैक्टिकली रियली यूज किया हुआ है इसको। सो दिस इज ए हार्डवेयर डिवाइस, व्हाट हैपेंस इफ यू हैव द ऑन प्रीमाइसिस डेटा विच इज मोर देन 100 TB, मतलब अगर आपके पास 100 TB तक का डेटा है ऑन प्रीमाइसिस में, अब आप उसको क्लाउड में ट्रांसफर करना चाहते हो इन द एजोर स्टोरेज, मान लो माइग्रेशन चल रही है, यू वांट टू ट्रांसफर द 100 TB ऑफ ऑन प्रीमाइसिस डेटा फ्रॉम ऑन प्रीमाइसिस स्टोरेज टू द एजोर क्लाउड।
सो इन दैट सिनेरियो आप कर तो सकते हो, ये सारे ऑप्शन यूज करके डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, बट व्हेन वी ट्रांसफर द 100 TB ऑफ डेटा और मोर देन 100 TB डेटा, सो इट विल कंज्यूम माई नेटवर्क बैंडविथ, मेरा नेटवर्क बहुत ज्यादा यूज होगा। और 100 TB का डेटा समझ रहे हो, ऑन प्रीमाइसिस से क्लाउड में लाने का मतलब है कि नेटवर्क स्लो कर दोगे आप पूरा पूरा। और ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में ट्रांसफर हो भी जाएगा, मतलब इफ यू हैव द 1 Gbps ऑफ कनेक्शन इन द ILL, स्टिल इट इज नॉट गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड इन 1 डे, क्योंकि 1024 GB का 1 TB होता है, और आप 100 TB का डेटा ट्रांसफर करने की सोच रहे हो, तो 1 डे का तो गेम है नहीं। और जितने दिन तक ट्रांसफर होगा पूरा नेटवर्क स्लो डाउन हो जाएगा, बिकॉज इट विल कंज्यूम द एंटायर बैंडविथ। तो अगर बहुत बल्कि डेटा है, फॉर एग्जाम्पल 100 TB या उससे ज्यादा का डेटा है, सो वी माइक्रोसॉफ्ट डज नॉट रिकमेंड टू ट्रांसफर इट वाया नेटवर्क, नेटवर्क से ट्रांसफर करने की सलाह माइक्रोसॉफ्ट नहीं देता। दे से दैट यू कैन ट्रांसफर द डेटा यूजिंग द एज्योर डेटा बॉक्स, कि आप एज्योर डेटा बॉक्स लेके इसके थ्रू डेटा ट्रांसफर कर लो। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपको ऑर्डर करना पड़ता है ऑन रेंट। कैसे ऑर्डर करना पड़ता है? सो यू कैन सिंपली जस्ट गो टू द एज्योर पोर्टल और यहीं से ऑर्डर होता है। लेट मी शो यू। यहाँ पे जब आप सर्च करोगे ना एज्योर डेटा बॉक्स, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, देखो। सो फ्रॉम हियर यू हैव टू क्रिएट ए रिक्वेस्ट। यहाँ पे रिक्वेजिशन ऑर्डर रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ती है कि कौन सा रिसोर्स ग्रुप का डेटा ट्रांसफर करोगे, क्या करोगे, नेक्स्ट करके एड्रेस वगैरह देना होता है कंपनी का। पर्सनली यू कैन नॉट रेज द रिक्वेस्ट फॉर द डेटा बॉक्स, इट इज ओनली फॉर द कंपनीज। सो कंपनी का एड्रेस देके कितना डेटा है, क्या है, कौन से रिसोर्स ग्रुप से कहाँ पे रखना है, तो वो सब डिफाइन करके यू हैव टू रेज ए ऑर्डर। फिर वो ऑर्डर जाएगा माइक्रोसॉफ्ट को, फिर वो ऐसा वाला डिवाइस, इसमें हार्ड डिस्क लगी है, दे विल कुरियर इट टू यू इन योर ऑफिस लोकेशन, आपके ऑफिस में कुरियर कर देंगे। आप इसको कनेक्ट करो यूएसबी के साथ अपने ऑन प्रीमाइसिस स्टोरेज पे, सारा डेटा कॉपी पेस्ट लगाओ। ऑफलाइन डेटा ट्रांसफर होता है, नेटवर्क का रोल ही नहीं है, जैसे हम अपने लोकल लैपटॉप में डेटा कॉपी पेस्ट करते हैं हार्ड डिस्क टू हार्ड डिस्क, सो ऐसे ही यहाँ पे सारा कॉपी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। वंस इट इज कॉपीड, इसको फिर से आपको कुरियर करना पड़ता है बैक टू द माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि आपने ऑर्डर रेस किया है यहाँ पे, तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप ऑलरेडी दे चुके होते हो कि कहाँ से क्या करना है, कैसे करना है। तो जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है कि ऑन प्रीमाइसिस से उठ के मान लो यूके साउथ के डेटा सेंटर में इस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप में कॉपी किया जाए, तो वो आपने अगर चूज कर लिया, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा, सीधा इस स्टोरेज को उठा के उस पर्टिकुलर रीजन में, उस डेटा सेंटर के अंदर लेके जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने डिसाइड किया कि मैं पॉप रिसोर्स ग्रुप में यूके साउथ के अंदर डेटा कॉपी करना चाहता हूँ, मतलब उठा के यहाँ से, सोर्स मेरा इंडिया, इंडिया से जाना चाहता है यूके साउथ। सो ये कुरियर सीधा, ये जो हार्ड डिस्क है, इट विल बी कुरियर टू द यूके साउथ डेटा सेंटर, सीधा यूके साउथ में भेजा जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, और यूएसबी लगा के उस पर्टिकुलर सर्वर पे डायरेक्ट जाके माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर में इसको लगा के सारा डेटा ऑफलाइन वहां पे कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा। So पूरा 100 TB का डेटा विदाउट कंज्यूमिंग द नेटवर्क बैंडविथ, इट विल बी कॉपीड टू द डेस्टिनेशन स्टोरेज, वो बहुत इजीली फिर कॉपी हो जाएगा। सो उसके बाद फिर आप ये सब लगा के जो नेक्स्ट डेटा कॉपी करने हैं 100 TB के बाद, जो भी नेक्स्ट डेटा होते जाएगा, फिर तो आप जैसे करना है करो, बट स्टार्टिंग में जो बहुत बल्कि डेटा है, सो यू कैन ऑर्डर द एज्योर डेटा बॉक्स फॉर ऑफलाइन डेटा ट्रांसफर, इससे ऑफलाइन डेटा ट्रांसफर होता है। बाकी ये डेटा बॉक्स डिस्क करके आती है, जिसमें हमें हार्ड डिस्क मिलती है लाइक दिस। एक तो होता है डेटा बॉक्स, एक होता है डेटा बॉक्स डिस्क। यहाँ पे इस टाइप की हार्ड डिस्क भेज देगा माइक्रोसॉफ्ट आपके ऑफिस में, इसको लगाओ, इसके कनेक्टर्स आते हैं, इसको यूएसबी में लगा के, उसके बाद अगर आपके पास छोटा मोटा डेटा है, जैसे 40 TB का डेटा है, 40 टेराबाइट्स का, तो आप इसका यूज करके डेटा इस पे कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट को कुरियर कर दो, माइक्रोसॉफ्ट फिर इसको कनेक्ट कर देगा डेटा सेंटर में सीधा, और आपका डेटा ऑफलाइन ट्रांसफर। तो इसका भी सेम प्रोसेस है, डेटा बॉक्स की रिक्वेस्ट रेस करनी पड़ती है हमें, एक तो डेटा बॉक्स है और एक डेटा डिस्क की रिक्वेस्ट आप रेस करोगे, सेम प्रोसीजर। तो ये भी एक ऑप्शन है। फिर एज करके भी आता है। एज में जो है मतलब नेटवर्क के थ्रू अगर आपको ऑन प्रीमाइसिस के नेटवर्क में कनेक्ट करके पूरा, जैसे मान लो कि ऑन प्रीमाइसिस में आपके पास 10 स्टोरेज है और वो 10 स्टोरेज स्विच के ऊपर कनेक्टेड है ऑन प्रेम, तो ये डेटा बॉक्स एज लाके वहाँ के स्विच के ऊपर कनेक्ट करो, ये 10 के 10 स्टोरेज यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे और लैन नेटवर्क में सारा डेटा यहाँ ट्रांसफर, फिर उसको उठा के जो है फिर आप डेटा सेंटर में कनेक्ट करके द डेटा कैन बी कॉपीड। और एक और ऑप्शन आ गया है डेटा बॉक्स हेवी, जिसमें 1 पेटाबाइट का डेटा, मतलब टीबी से भी ऊपर
800 टेराबाइट की ये वो देगा आपको लिमिट। 800 टीबी तक का डेटा आप ऑन प्रेमाइसिस से एज्योर में शिफ्ट कर सकते हो, बट इट इज इन द प्रीव्यू, मतलब ट्रायल में है। बाकी फिर गेटवे करके ऑप्शन आता है, गेटवे के ऑप्शन में ऑन प्रीमाइसिस से एज्योर जो है बल्क डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हो यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट ओन प्राइवेट गेटवे। तो नेटवर्क यूज होगा यहाँ पे, बट वो माइक्रोसॉफ्ट का होगा, तो इसमें फिर खर्चा भी वो लेंगे। फाइल सिंक करके एक सर्विस होती है, इट इज द प्रैक्टिकल ऑफ AJ 305 अगेन, जहाँ पे ऑन प्रीमाइसिस के जो फाइल शेयर्स होते हैं उसका डेटा उठा के आप एज्योर के फाइल शेयर के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे मैंने आपको फाइल शेयर पढ़ाया था ना, फाइल शेयर में हमने तो क्लाउड वाला फाइल शेयर पढ़ा है, बट जहाँ पे ऑन प्रेम में फाइल शेयर है एंड दे हैव नाउ डिसाइडेड टू माइग्रेट, उन्होंने अब सोचा कि यार माइग्रेट कर लेते हैं, ऑन प्रीमाइसिस में नहीं चलाएंगे, एज्योर में चलाएंगे। सो जो ऑलरेडी ऑन प्रीमाइसिस के अंदर जो उसका डेटा रखा हुआ है फाइल शेयर में, दैट हैज टू बी सिंक टू द एज्योर, तो उसके लिए फाइल शेयर। या फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम ऑन प्रीमाइसिस भी चलाएंगे और हम एज्योर भी चलाएंगे, दोनों जगह फाइल शेयर चलाएंगे, बट यहाँ पे जो ऑन प्रीमाइसिस का जो भी डेटा है फाइल शेयर में, दैट शुड बी सिंक टू द एज्योर फाइल शेयर ऑल्सो। तो दोनों के बीच में लाइव सिंकिंग, लाइव रेप्लिकेशन होना चाहिए, उसके लिए फाइल सिंक का ऑप्शन है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड प्रैक्टिकल, मतलब इन सब चीजों के प्रैक्टिकल है। AJ 305 में प्रैक्टिकल्स है इनके, बट डेटा बॉक्स के प्रैक्टिकल तो वहाँ पे भी नहीं है, वहाँ पे बस तरीका समझाया जाता है, क्योंकि ये ऑर्डर करना पड़ता है और ये कंपनीज को ही दिया जाता है। सो डेटा बॉक्स, डेटा डिस्क, इसके प्रोसेस बताए जाते हैं, बट ऐसे डिस्क ला के नहीं दिखाई जाती। बाकी प्रैक्टिकल इनके हो जाते हैं, जैसे कि AJ कॉपी, पावर शेल, CLI, डेटा फैक्ट्री, फाइल सिंक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टूल, इनके प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो दीज आर द मल्टीपल मेथड्स। इनके बारे में पढ़ लेना आप लोग, ऐसे वन लाइन करके लिखा हुआ है ना ये, तो ऐसे ऐसे करके पढ़ लेना। इंटरव्यू में कोई पूछता नहीं है, बट अगर आपसे किसी ने एक नॉर्मल सा सिनेरियो को बेस्ड क्वेश्चन कर दिया कि ऑन प्रेम का डेटा एज्योर पे ले जाना है, सो हाउ विल यू डू दैट, तो आप उनको बता सकते हो कि इतने सारे मेथड्स अवेलेबल है इन एज्योर, और कहाँ कहाँ पे कौन सा काम करेगा, सो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो डिस्क्रिप्शन में। अब वो बोलेगा कभी किया है, सो मना कर देना, आई हैव नॉट डन इट, क्योंकि आपने किया भी नहीं है प्रैक्टिकली। सो डोंट टेल द लाई कि डेटा ट्रांसफर किया है मैंने, माइग्रेशंस करी है, क्योंकि इतने छोटे लेवल पे माइग्रेशन आपने करी भी नहीं होगी। बाकी ऑप्शंस है, सो यू कैन ऑलवेज गो थ्रू विद देम, आप पढ़ पढ़ के देख भी सकते हो चीज़ों को। खुद से प्रैक्टिस करना चाहो तो एजो कॉपी आप कर सकते हो स्क्रिप्ट बना के, इट इज़ ईजी। एक दो कमांड आपको अगर एडिट करनी आती है तो, और फाइल सिंक भी देख सकते हो आप लोग। बाकी के लिए यू नीड वेरी गुड नॉलेज ऑफ पावर शेल, रेस्ट एपीआईज एंड एवरीथिंग, जो कि बात का पार्ट है, अभी का तो नहीं फिलहाल। सो दिस इज ऑल्सो डिस्कस्ड। बाकी के ऑप्शन हमें नहीं करने हैं, ये हमने कर लिया। ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन, डेटा प्रोटेक्शन हम कर चुके, रिडंडेंसी हम कर चुके, ये प्रीव्यू ऑप्शन है, इट इज अंडर ट्रायल। कॉन्फ़िगरेशन हम देख चुके हैं। डेटा लेक इज नॉट पार्ट ऑफ अस, ये डेटा एनालिसिस का पार्ट है। कोरस भी हमारा पार्ट नहीं है, इट इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। बाकी एंड पॉइंट वगैरह भी हमारा पार्ट नहीं है, ये सब प्रॉपर्टीज है, कहाँ पे क्या कनेक्टेड है। मॉनिटरिंग हम अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, मतलब दिस टॉपिक हैज बीन एंडेड नाउ, सो ऑन नेक्स्ट सैटरडे आई विल स्टार्ट द बैकअप एंड रीस्टोर सर्विसेज। एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा हमारा इन एज्योर, बैकअप एंड रीस्टोर, जिसमें मैं आपको सारे सर्वर्स के बैकअप, स्टोरेज के बैकअप्स, ये सब दिखाऊंगा। एंड देन वी विल गो विद द मॉनिटरिंग टॉपिक और एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी। 3 टॉपिक हमारे बचे हैं एज्योर में, वो 3 क्लासेस में खत्म हो जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द डेवऑप्स। So for now, we can just wrap up this call. So thank you very much for your timing. See you in the next Saturday. Bye.